If you are able to hear me, please type clear. Okay, thank you. Thank you for the confirmation. So I will just share the screen and we'll start the session. Thank you for the confirmation. Let me share my screen. So I hope now you all can see the screen. So good afternoon, everyone. My name is Vipul Khandilwal. I'm a qualified chartered accountant, company secretary, and certified financial planner. I'm founder of a company which is called Money Compound. I'm also a financial coach and a trainer. And I'm also associated with ICICI Mutual Funds to mentors mutual fund distributors across India. I'm an SM certified, I'm insurance regulatory certified, and also MFI registered distributor. सो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज के इस सेशन में. So this is a small journey about me. I qualified my CA and CS exams in 2007. I started my career with a company called Vedanta, and after that I switched to two other companies known as SR and Lava. And then 2018 I left my job and started my own company which is into financial planning and wealth management. In 2021 I completed CFP, which is Certified Financial Planner from USA. And then in 2023, I started two new companies in financial domain. So this has been my journey. A small intro about my company. So my company is into financial planning and wealth management. So we provide a comprehensive financial planning solution to our clients. The company mission is very clear that we want to provide a one-stop financial solution and promote financial literacy among people. We provide unbiased and professional investment services to people for long-term wealth creation. So आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. That's primarily on financial literacy for women entrepreneurs. तो सबसे पहले बात करते हैं कि women plays a very important role in our society. Not only in home but outside home also. Obviously, अगर हम अपनी family की बात करें तो they perform various roles very well, like a role of a mother, wife, sister, and other relatives. अगर हम बात करें, बट सोसाइटी में भी दे परफॉर्म ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगर हम बात करें अदर फंक्शन देन द फैमिली फंक्शंस. बट कहीं ना कहीं इन रोल्स को निभाते निभाते ना financial literacy थोड़ा सा बैक सीट ले लेती है. So they are so much focused on the family as well as in the businesses or job which they are doing that financial literacy sometimes take a back seat. और कई बार ऐसा होता है कोई क्राइसिस सिचुएशन आती है then they get into know about all the financial matters and तब थोड़ा सा चीजें बिकॉज दे डोंट नो अबाउट द होल थिंग तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है. अगर हम देखें तो एक सर्वे कंडक्ट हुआ था, ये ईटी में एक सर्वे आया था जहाँ पे ह्यूमैनिटी वेलफेयर काउंसिल ने एक सर्वे कंडक्ट किया था जहां पे उन्होंने बताया था कि 80% ऑफ वुमेन इन इंडिया स्ट्रगल विद फाइनेंशियल लिटरेसी. सो दे आर एजुकेटेड बट जहां तक फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं तो थोड़ा सा वो नंबर काफी हाई है. एंड अराउंड 62% ऑफ इंडियन वुमेन्स डू नॉट ओन बैंक अकाउंट्स और हैव ए लिमिटेड एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज. अब कहीं ना कहीं नंबर हमें दिखता भी है अगर हम वर्क प्लेस पार्टिसिपेशन की बात करें अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया तो मेल का वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन 53% है, फीमेल का 25%. सिमिलरली इन रूरल एरिया इट इज 53 एंड 30%. सो कहीं ना कहीं वुमेन्स का जॉब में पार्टिसिपेशन भी शायद कम है एंड उसकी वजह से कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो डिसीजंस की हम बात करते हैं या फाइनेंशियल नॉलेज की बात करते हैं थोड़ा सा वो बैकसीट ले लेती है. बट अगर हम बात करें सेविंग्स की तो आई बिलीव वुमेन्स आर ऑलवेज बेटर इन सेविंग्स देन मेन. और हम सब आई थिंक स्पेशली अगर हम अपनी मदर्स की बात करें तो हम सब जानते हैं कि दे आर एक्सलेंट सेवर्स. मतलब
उनकी जो पॉकेट मनी होती है उससे वो पैसा अपने लिए खर्च नहीं करती, वो फैमिली में इमरजेंसीज के लिए दे कीप मनी एनीवेयर, वो कहीं भी मतलब रखती हैं, आई विल नॉट से छुपा के बट सेव करके, दे कीप मनी एट डिफरेंट प्लेसेस सो दैट कभी कोई इमरजेंसी आ जाए फैमिली में तो उसको वो हेल्प आउट कर सके। तो सेविंग्स की बात करें तो दे आर एक्सीलेंट, बट जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो फिर थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है, मतलब सेविंग में दे आर वेरी गुड बट इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग में दे टेक ए बैक सीट। तो आज का जो सेशन है वो आई थिंक इज प्राइमली ड्रिवन कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल नॉलेज को कैसे स्प्रेड आउट करें, कैसे क्या क्या चीजें को समझें जो कि हमारे को या हमारी फैमिली को एक बेटर फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है। अब फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों इंपॉर्टेंट है वुमन के लिए? सो इट प्रिपेयर्स देम फॉर इमरजेंसीज, कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो अगर आप फाइनेंशियली चीजों को पता है तो आप बेटर डिसीजन ले पाते हो। वुमेन नॉर्मली हैंडल्स द फैमिलीज के जो फाइनेंसेस होते हैं या फिर मैं कहूँगा घर के जो खर्चे होते हैं, तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग है दे आर द प्राइमरी इन्फ्लुएंसर। तो अगर वो फाइनेंशियल चीजों को समझेंगी तो बेटर डिसीजन ले सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चिल्ड्रन कहीं ना कहीं अपनी मदर से इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होते हैं, और अगर मदर्स ने वो जो फाइनेंशियल हैबिट्स हैं अगर अच्छे से इंकलकेट करिए तो कहीं ना कहीं वो बच्चों के लिए भी आगे बहुत हेल्पफुल होती है। मोस्ट फैमिलीज की हम बात करते हैं डे टू डे एक्सपेंसेस वुमेन मैनेज करती हैं, तो उनका ये यूसेज ऑफ मनी इंपॉर्टेंस है, उनको पूरी नॉलेज रखना। सेविंग्स तक और एक्सपेंसेस तक दे आर एक्सेलेंट। नाउ जो आज का हमारा सेशन इज मोर ऑन द नेक्स्ट स्टेप विच इज ऑन द इन्वेस्टमेंट साइड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज प्लानिंग। हम जब से फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो दो वर्ड में ब्रेक है, फाइनेंशियल और प्लानिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज प्लानिंग। तो अगर प्लानिंग को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करी जाए तो होता है प्लानिंग इज ए प्रोसेस ऑफ थिंकिंग रिगार्डिंग द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिजायर्ड गोल। यानी कि अगर आपको कोई भी गोल को अचीव करना है उसके लिए आपने कोई भी स्टेप्स लिए हैं, उसके लिए कोई भी आपने एक्शंस लिए हैं, प्लानिंग करी है, मतलब आपने ड्रॉ डाउन किया है उसको, उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी आप स्टेप्स कर रहे हो वो प्लानिंग का प्रोसेस होता है। अब डे टू डे लाइफ में हम सब प्लानिंग का यूज करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि हम कहीं घूमने जाते हैं तो ट्रैवल की प्लानिंग करते हैं, घर में कोई मैरिज फंक्शन होता है तो पूरी प्लानिंग करते हैं, स्टडीज के लिए प्लानिंग करते हैं, कोई इवेंट हो रहा है तो प्लानिंग करें, घर में हो घर का इनॉग्रेशन है तो प्लानिंग कर रहे हैं। तो हम सब अपनी डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं प्लानिंग को यूज कर रहे हैं। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम पूरी प्लानिंग करते हैं कि हमें कहाँ घूमने जाना है, कौन से होटल्स बुक करने हैं, कौन से टिकट्स बुक करनी है, फ्लाइट लेनी है कि ट्रेन लेनी है, वहां पे कार को लेना है, टैक्सीज लेनी है, तो वी डू कंप्लीट प्लानिंग। एंड सेम हैपेंस विद एवरी एरिया। अगर हम मैरिज की बात करें, इवेंट की बात करें, घर में कोई फंक्शन है, सो वी डू कंप्लीट प्लानिंग। गेस्ट की लिस्ट बन रही है, आप जो भी आपके कुक हैं उनको आप बुला रहे हो, डेकोरेशन वाले को बुला रहे हो, एवरीथिंग वी प्लान वेरी वेल। बट कहीं ना कहीं जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो एक बैक सीट ले लेती है। अब आपको कोई भी गोल मुझे लगता है अगर अचीव करना है तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये दो लोगों की कोट है जहां पे बताते हैं कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आपने प्लान करना फेल किया है तो फिर श्योर शॉट गारंटी है कि आप फेल करोगे। और एक वॉरेन बफे का कोट है। वॉरेन बफे इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स ऑफ ऑल टाइम, ही इज इन यूएस एंड ही इज कंसिडर्ड एज ए गॉड फादर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। उनका भी बहुत पावरफुल कोट है कि एन इडियट विद ए प्लान कैन बीट ए जीनियस विदाउट ए प्लान। तो अगर आपको एक इडियट भी है ना बट उसका कोई प्लान बना रखा है तो चांसेस है कि वो अचीव कर लेगा देन ए जीनियस हु डजंट हैव एनी प्लान। सो कहीं ना कहीं प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्लानिंग हम हर अपनी लाइफ की हर एक पार्ट में यूज करते हैं, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम क्यों नहीं करते? जब हम प्लानिंग को सब जगह यूज करते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग में प्लानिंग को यूज क्यों नहीं करते? अब फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं, व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। So, financial planning is a logical process of managing your money so that it can help you to achieve all your financial goals and protect you from the uncertainty and contingency. अगर इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब ये होता है कि आपके लाइफ के जो भी इंपॉर्टेंट गोल्स हैं हम उनको पूरा कर सके, अचीव कर सके, और लाइफ में जो भी रिस्क हो सकती है उसको मिटिगेट कर ले सो दैट हमारी जो फैमिली के फाइनेंसेस है वो हैम्पर ना हो। तो इसमें तीन मेजर पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज अनसर्टेनिटी,
सेकेंड इज कंटीजेंसी एंड थर्ड इज गोल्स। अब तीनों के बारे में हम आगे थोड़ा सा समझेंगे, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को ही हम कहेंगे कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग हम पूरी कर रहे हैं। अगर इनमें से कुछ भी एक चीज मिस है तो आई थिंक फाइनेंशियल प्लानिंग को हम यानी कि सही से नहीं कर रहे, यानी कि कुछ मिस है। ओके, सो लेट अस से, सो प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है? सो इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम फाइनेंशियल कंटीजेंसीज, इट इंक्रीजेस द चांसेस, it helps in reducing financial uncertainty, it helps you to set financial goal, it reduces the stress and anxiety। ये सारी के सारे हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग करने के फायदे। अब फाइनेंशियल प्लानिंग को एक एक पार्ट में ब्रेक करते हैं। जैसे हमने बात करी प्लानिंग ऑफ अनसर्टिनिटी। अब लाइफ में बहुत सारी अनसर्टिनिटी होती है। अब उस अनसर्टिनिटी को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इंश्योरेंस इज ए वेरी मेजर कंपोनेंट कि लाइफ में जो भी जहां पे भी रिस्क इन्वॉल्व है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं या अपने रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हैं बाय टेकिंग एडुकेट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस कई फॉर्म के हो सकते हैं। इट कुड बी अ लाइफ इंश्योरेंस, इट कुड बी मेडिकल इंश्योरेंस, इट कुड बी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, इट कुड बी अ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। मेरा ये मानना है लाइफ में कि जो भी चीज इंपॉर्टेंट है या जो भी चीज बहुत वैल्यूएबल है और जिसके खोने से आपको नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, उसका आपको इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए। तो अगर हम सबसे पहले बात करें लाइफ इंश्योरेंस के लिए, तो लाइफ इंश्योरेंस में टर्म प्लान इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग और मैनेजिंग द रिस्क। अब टर्म प्लान क्या होता है? टर्म प्लान बहुत ही सिंपल इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जहां पे जो भी फैमिली का अर्निंग मेंबर है उनका वो इंश्योरेंस होता है। दे पे प्रीमियम, एक अच्छे अमाउंट का कवरेज मिल जाता है। एंड इन केस अगर उस फैमिली के जो अर्निंग मेंबर है उनको कुछ होता है तो जो डिपेंडेंट फैमिली है उनको वो अमाउंट मिल जाता है जो उन्होंने कवरेज करा रखा हो। तो आप में सब में से जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों ने अपने मतलब अपना या फिर अपनी फैमिली मेंबर्स में जो अर्निंग मेंबर है उनका टर्म इंश्योरेंस है। अगर आप लोगों का टर्म इंश्योरेंस आप लोगों ने करा रखा है तो प्लीज टाइप यस, अदरवाइज टाइप नो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। सो टर्म इंश्योरेंस की बात करो, यहाँ पे नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बात नहीं करो जहाँ पे सेविंग्स प्लान मिक्स होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर टर्म इंश्योरेंस एंड आई थिंक अच्छा कुछ पार्टिसिपेंट्स का नो आया है, कुछ का यस आया है। सो एक्सीलेंट, जिन्होंने भी टर्म इंश्योरेंस करा रखा है, इट्स द राइट इंश्योरेंस। फैमिली में जो भी अर्निंग मेंबर्स है उनका एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। सी क्या होता है अगर अर्निंग मेंबर को इन केस कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ हो जाता है, अब उस पर्सन को तो आप वापस नहीं ला सकते, बट उनकी जो कमी है, एटलीस्ट जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो फैमिली फेस करेगी उसको आप मिनिमाइज कर सकते हो अगर आपने एक अच्छे अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस करा रखा है तो। देन कम्स मेडिकल इंश्योरेंस। अब हम सब ऑब्वियसली ह्यूमंस हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। कभी फैमिली में कुछ हो गया, कभी कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ इमरजेंसीज हो सकती है, बीमार हो सकते हैं। अब नॉर्मल बीमारी है देन इट इज ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, आपने डॉक्टर को दिखाया, आप ठीक हो गए। बट इन केस अगर उसकी वजह से आपको हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा, कुछ टेस्ट होने पड़े, इट कुड हैपन विद एनीवन, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ बीमारी हो जाती है, तो हॉस्पिटलाइज जब होते हैं तो एक बड़ा बिल आता है हॉस्पिटलाइजेशन का। तो उसको कवर अप करने के लिए कहीं ना कहीं हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फैमिली फ्लोटर प्लान ले सकते हैं जहां पे आपका पूरा फैमिली कवर्ड होता है। उसके साथ साथ आप कुछ अलग से कवरेज भी होते हैं जैसे क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस वो इंश्योरेंस कवरेज होता है जहां पे कुछ बड़ी बीमारियां होती हैं और उस बड़ी बीमारी अगर डिटेक्ट होती हैं तो कंपनी आपको उतना अमाउंट पे कर देती है। नॉर्मली थोड़ी बड़ी डिसीजेस होती हैं उसके लिए क्रिटिकल इलनेस होते हैं। देन कम्स डिसेबिलिटी एंड पर्सनल एक्सीडेंट, कि अगर बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ समथिंग कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है तो आपको इंश्योरेंस से कुछ अमाउंट आता रहता है। देन कम्स द सुपर टॉप अप इंश्योरेंस। अगर आपने एक फैमिली फ्लोटर प्लान ले रखा है बट आपको लगता है कि आपको एक कवरेज बढ़ाना है, देन सुपर टॉप अब से आप वो कवरेज को बढ़ा सकते हैं विद लेसर प्रीमियम। सो दीज आर वेरियस मोड ऑफ इंश्योरेंसेस जहां पे आप अपने फैमिली को मेडिकली आप इंश्योरेंस लेके जो भी मेडिकल कॉस्ट आएगी उसको आराम से कवर अप कर सकते हो। आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एवरीवन शुड हैव ए फैमिली फ्लोटर मेडिकल इंश्योरेंस, एटलीस्ट एक इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। देन कम्स प्लानिंग फॉर कंटिजेंसीज। अब फाइनेंशियल प्लानिंग का जो सेकंड कंपोनेंट है
वो है प्लानिंग फॉर कंटिजेंसीज। अब कंटिजेंसीज क्या है, कुछ भी हो सकते हैं। फैमिली में किसी को कोई फंड्स की जरूरत हो सकती है, हमारी बिजनेस में हो सकता है कि कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाए, हमें कुछ बड़ा ऑर्डर मिले और हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़े, या हमारे पास कुछ भी फैमिली में इमरजेंसी हो और हमें पैसों की जरूरत हो, या हमारे फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स को। तो कहीं ना कहीं हमें ये सब कंटिजेंसीज के लिए एक अलग से फंड इकट्ठा करना चाहिए। अब क्या आता है कंटिजेंसीज के लिए, मेरा ये मानना है, फाइनेंशियल प्लानिंग में हम नॉर्मली बोलते भी हैं कि आप अपने जो फैमिली का एक्सपेंसेस है, 6 to 9 मंथ का जो एक्सपेंसेस है, उसको आप अलग से सेविंग्स में या एफडी में करके रखो, विच इज हाईली लिक्विड। उस पैसे को आप कभी भी निकाल सकते हो, बट मेक श्योर कि वो इमरजेंसी फंड है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि आप उस आपने इमरजेंसी फंड आपने इकट्ठा करा और सपोज उससे आपको लैपटॉप लेना है या घूमने जाना है तो आपने फंड को यूज कर लिया, नहीं। ये इमरजेंसी फंड को आप तभी यूज करो जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो फैमिली में या बिजनेस में। सो ये अमाउंट आपका अगर अलग रहेगा तो कभी भी कुछ शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स आएगी, लिक्विडिटी प्रॉब्लम आएगी, तो आप चीजें मैनेज कर पाओगे। तो मिनिमम 6 months to 9 months का जो आपका मंथली एक्सपेंसेस है वो आप अलग से सेव करके रखो, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग फॉर कंटिजेंसी। नाउ कम्स द थर्ड पार्ट एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज प्लानिंग फॉर गोल्स। अब प्लानिंग फॉर गोल्स का मतलब क्या है? देखिए, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। अगर हम गोल्स को समझ लेंगे, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इट वुड बी अ राइट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ऐसा समझ लीजिए कि आप एक फुटबॉल मैच खेलने देखने जा रहे हैं, उस फुटबॉल मैच में गोल पोस्ट नहीं है। अब आप देख रहे हैं दो टीम फुटबॉल खेल रही है बट देयर इज नो गोल पोस्ट। अब एक कुछ टाइम के बाद आई थिंक हम सब बोर हो जाएंगे, बिकॉज देयर इज नो एंड, हमें पता ही नहीं कि इसमें कौन टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी, सो देयर इज नो गोल पोस्ट। ऐसे लाइफ में अगर आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ की सक्सेस अचीव करनी है तो हमें हमारे फाइनेंशियल गोल्स पता होना चाहिए। और पता होने के साथ साथ इट शुड बी अ स्मार्ट गोल। अब स्मार्ट गोल का मतलब क्या होता है? इट इट हैज टू बी स्पेसिफिक, हमें पता होना चाहिए कि हमारा ये गोल है। अब फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं हम आगे समझेंगे। सो मैं इनफेक्ट दिखाई देता हूँ। तो फाइनेंशियल गोल्स कैन बी अ वेल्थ क्रिएशन गोल, अ वेकेशन गोल कि हमें इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है हर 3 साल में, हमें घर खरीदना है, हमें अपने बच्चों की प्लानिंग करनी है मैरिज की, हमें बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग करनी है, या हमें खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, या हमारी एक ड्रीम कार, एक लग्जरी कार है, हमें वो खरीदनी है। सो इट कुड बी एनी गोल। देखिए, हम सब की लाइफ में कहीं ना कहीं ये सारी चीजों की जरूरत होती है। इट ऑल डिपेंड्स, किसी के लिए ड्रीम हाउस कुड बी अ 1 करोड़ हाउस, इट कुड बी अ 5 करोड़ हाउस फॉर समवन एल्स। किसी के लिए ड्रीम कार कैन बी अ होंडा कार, किसी के लिए ऑडी कार। इट कैन चेंज, आपके गोल की वैल्यू, आपके गोल का टेन्योर, इट कैन चेंज, बट मेजरली अगर आप देखेंगे एक इंडिविजुअल, एक फैमिली में यही मेजर गोल्स होते हैं। यू कैन हैव सम अदर गोल्स ऑल्सो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट ये बहुत कॉमन गोल्स है। अभी कॉमन गोल्स में जब हम गोल की प्लानिंग करते हैं तो इट हैज टू बी मेजर टू दिस स्मार्ट मेट्रिक्स। अब स्मार्ट मेट्रिक्स का मतलब क्या है? एस स्पेसिफिक, आपका एक एक गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। लाइक आई वॉन्ट टू बाय ए कार, आई वॉन्ट टू बाय एन ऑडी कार। मेजरेबल, इट शुड बी मेजरेबल। तो आपको मालूम है कि आपका एक गोल है वो मेजरेबल है, एन ऑडी कार अचीवेबल। अब आपको सेविंग करनी है, यू नो कि व्हाट इज योर फाइनेंसेस। अब इट शुड बी अचीवेबल गोल। अब मैंने ये गोल सेट किया कि आई वॉन्ट टू बाय अ फरारी, और मैं महीने की सेविंग कर रहा हूँ 20,000 रुपीज। मतलब इट इज नॉट अचीवेबल, यानी कि मैं अपने आप से सच नहीं बोल रहा हूँ, इट इज नॉट अचीवेबल। इट इज हैज टू बी रियलिस्टिक। क्या वो जो गोल है वो क्या वो रियलिस्टिक गोल है? एंड इट हैज टू बी टाइम बाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देयर शुड बी टाइम फॉर एवरी गोल। कि सपोज आई वांट टू बाय एन ऑडी कार इन नेक्स्ट 5 years, सो दैट इज कॉल्ड अ प्रॉपर गोल। जब आपके पास गोल सेट हो जाएंगे तो उसके हिसाब से आप गोल्स की वर्किंग कर सकते हो। सो उसके हिसाब से यू कैन डू अ बैक वर्किंग ऑन गोल। सो अभी तक हमने जो जो चीजें करी, आई होप इट इज क्लियर। इफ एनीवन हैज एनी डाउट कैन यू कैन प्लीज टाइप इन योर चैट बॉक्स। इफ एवरीथिंग इज क्लियर प्लीज टाइप क्लियर, तो फिर हम आगे चलेंगे। प्लीज टाइप क्लियर इफ एवरीथिंग इज क्लियर। कोई डाउट है तो हम अभी कवर कर लेते हैं, देन विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। क्लियर, क्लियर, थैंक यू। थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन, एंड आई विल रिक्वेस्ट थोड़ा सा सेशन इंटरेक्टिव रखेंगे आगे। आई विल कीप आस्किंग क्वेश्चंस एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग रिस्पॉन्ड करिए, तो विल हैव टू वे कम्युनिकेशन। सेशन को एक एक वे नहीं रखेंगे, इसको टू वे रखेंगे। सो अब ये सारे गोल्स अचीव करने हैं, हमने बात करा कि ये इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल्स हैं, हमने मेजर भी कर लिया।
सब कुछ कर लिया, हमने टाइम बॉन्ड भी कर लिया, अब व्हाट नेक्स्ट? मतलब अब इस गोल्स को अचीव करना है तो हम सेविंग से भी कर सकते हैं, हम जो पैसा अर्न करते हैं उसको सेव करेंगे और अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। सो ऑब्वियसली आई थिंक कहीं ना कहीं जो भी पैसा हम अर्न करते हैं वो तीन पार्ट्स में ही जाता है, या तो हम कुछ सेव करते हैं, कुछ स्पेंड करते हैं, या फिर जो सेविंग है उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन इज कि आई मतलब इफ यू सी द एंड रिजल्ट इज आइदर ऑफ दीज थ्री थिंग्स। जो पैसा आएगा या तो हम यूज कर लेते हैं, या हम उसको सेव करते हैं, या फिर हम उसको इन्वेस्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये कि सिर्फ सेविंग करके क्या मैं अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकता हूँ? भाई अगर मेरे को कोई गोल अचीव करना है, मुझे घर खरीदना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे बच्चों के लिए प्लानिंग करनी है एजुकेशन की या मैरिज की, तो मुझे इन्वेस्टमेंट क्यों करना है? मैं अपनी सेविंग से ही कर सकता हूँ। बट आई विल टेल यू कि सिर्फ सेविंग विल नॉट हेल्प यू। आपके गोल्स अगर आपको पूरे करने हैं, तो सेविंग्स विल नॉट हेल्प यू। अब क्यों सेविंग्स विल नॉट, अलोन सेविंग्स विल नॉट हेल्प यू? क्यों? सेविंग्स इज द फर्स्ट स्टेप, बट उस सेविंग को अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप शायद अपने सारे गोल्स को पूरा नहीं कर पाओगे। अब सेविंग्स की अगर हम बात करें तो हम सबका जो लाइफस्टाइल है ना वो काफी चेंज हो गया। सो आप देख सकते हो कि पहले के जमाने में एक नॉर्मल फोन आता था, एक नॉर्मल टीवी आता था, एक नॉर्मल बल्ब है, आज एलईडी। तो एवरीथिंग हैज गॉट एडवांस्ड एंड एवरीथिंग हैज बिकम एक्सपेंसिव। पहले एक फोन 5 7 thousand 10,000 का वॉज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंसिव फोन, पर आज की तारीख में 50,000 70,000 1 लाख 1,30,000 इजिली, मतलब मैं बता रहा हूँ, पीपल कैन अफोर्ड एंड यूज दिस। सेम थिंग हैपेंस, पहले टू व्हीलर वॉज ए सिंपल स्कूटर, आज बहुत अच्छी बाइक्स हैं। पहले कार सिंपल दो चार कार्स होती थी, एम्बेसडर, मारुति 800। नाउ एवरीबॉडी वांट एन एसयूवी। पहले नॉर्मल डेस्कटॉप्स होती थी, नाउ एवरीबॉडी वांट्स ए हाई हाई एंड लैपटॉप्स। सो एक तो चीजें महंगी हो गई हैं, सेकंड हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया है। पहले जो चीज हम बहुत सिंपल या चीजें रखते थे या बहुत सस्ती खरीदते थे, वो सब सारी चीजें एक्सपेंसिव हो गई हैं। पहले हम कोई शूज खरीदते थे 10 साल पहले, आज से तो बहुत नॉर्मल है कि 500 700 रुपए की शूज आते थे। बट आज हम कोई शूज खरीदते हैं तो ब्रांडेड शूज खरीदते हैं। पहले हम कोई वॉच खरीदते थे तो 2 3 4 thousand में बहुत अच्छी वॉचेस आती थी। बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस बैंड, 10 20 30,000। वी टॉक अबाउट द नंबर, एवरीथिंग इज अवेलेबल। पहले हम मूवी देखने जाते थे तो एक नॉर्मल सा मूवी हॉल होता था, स्नैक्स में समोसे खाते थे और पूरी फैमिली 300 400 रुपए मूवी देख लेती थी। पर आज हम वही मूवी विद फैमिली जाते हैं, वही सेम 4 लोगों, तो 1,500 to 2,000 इज ए नॉर्मल बिल। एवरीथिंग हैज बिकम एक्सपेंसिव। सो क्वेश्चन ये कि हमारी जो सेविंग्स है दैट विल नॉट हेल्प अस टू अचीव ऑल आवर गोल्स। अब उसके ऊपर से क्या है कि अगर हम अपने पेरेंट्स से एडवाइस लें, अपने सीनियर से एडवाइस लें, तो उनके टाइम पे क्या होता था, उनका जो पूरा फोकस रहा लाइफ का वो था रोटी कपड़ा और मकान, कि कैसे मैं एक अपना घर ले लूं, मैं कैसे अपने बच्चों को एक अच्छी सी एजुकेशन दे दूं और एक अच्छा सा हम जीवन जी सके। उनका सारा फोकस ये था। पर अगर हम आज की बात करें तो कहीं ना कहीं वी वांट टू लिव द वे लाइक जिंदगी ना मिले दोबारा। वी वांट टू गो फॉर अ वेकेशन, वी वांट टू गो फॉर अ ट्रिप, वी वांट टू बाय एन एसयूवी कार। तो दोनों में डिफरेंस है। अब अगर हम लाइफस्टाइल अपने हिसाब से जी रहे हैं और इन्वेस्टमेंट एडवाइस अगर हम अपने पेरेंट्स से ले रहे हैं, देन देयर इज अ डिस्कनेक्ट, देन देयर इज अ सीरियस डिस्कनेक्ट। उनके टाइम पे वो एडवाइस काम करती थी बिकॉज उनके टाइम पे खर्चे बहुत लिमिटेड होते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी और चीजें मैनेज हो जाती थी। बट द सिनारियो हैज कंप्लीटली चेंज टुडे। न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं एंड लाइफस्टाइल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो हम देखेंगे कि हमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे अपने इन्वेस्टमेंट अप्रोच पे। अब आप देखोगे करंट में, अगर हम देखें कि आज की तारीख में इफ 100 रुपीज इज देयर, तो दिस इज ए रिसेंट डेटा जहां पे स्टिल 50% रियल स्टेट में इन्वेस्ट होता है, 15% बैंक डिपॉजिट, 15% गोल्ड, 6% इंश्योरेंस एंड इक्विटीज में 4.8%। तो इन्वेस्टमेंट आज भी कहीं ना कहीं वैसा चल रहा है जैसे ट्रेडिशनली हमारे पेरेंट्स हमें बताते थे कि आप गोल्ड खरीद लो, एफडी में पैसा डाल दो, पीपीएफ में पैसा डाल दो, लैंड ले लो, ये अच्छा इन्वेस्टमेंट की अप्रोचेस है, इसी में इन्वेस्ट करो। बट अभी हम देखेंगे कि देयर सम डिस्कनेक्ट, और क्यों हमें ये चेंज करने की जरूरत है। तो अब क्वेश्चन आता है कि जब हम कब कोई भी चीज में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सो मेरे हिसाब से ये चार पैरामीटर्स हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कि हमारा जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सेफ है, सिक्योर है कि नहीं है। टैक्स एफिशिएंट है कि नहीं है, जो भी हम इनकम अर्न कर रहे हैं, हाउ इज टैक्स्ड, उससे कोई रेगुलर रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इजी लिक्विडिटी, जब हमें जरूरत हो हम उसको निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आउट ऑफ दिस फोर, अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होता है? तो यू कैन राइट सेफ्टी, यू कैन राइट टैक्स, यू कैन राइट रेगुलर और यू कैन राइट लिक्विडिटी।
यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स। अगर आज आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो आपके हिसाब से आउट ऑफ दीज फोर, ये चारों इंपॉर्टेंट है, बट अगर मैं प्रायोरिटी वाइज करूं तो नंबर वन प्रायोरिटी आप लोगों की क्या होगी? सो प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। Regular return, regular return, regular return, easy liquidity. Okay, okay, wonderful. So let's have more response. Let us have more responses. So we have more than 20 plus participants. We'll request everyone to be little active on chat. So I've got response majorly regular return and some has written liquidity. Okay, so I think ये चारों important है, but अगर मैं अपनी बात करूंगा तो I personally feel सेफ्टी। ओके, तो अनिता जी ने भी सेफ्टी लिखा, एक ने टेक्स्ट लिखा, निधि जी ने रेगुलर रिटर्न। ओके, एंड देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर, सबका अपना प्रेफरेंस है, विच इज ओके, इट्स परफेक्टली ओके। तो अगर मैं अपनी बात करूंगा तो मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये चीज ना, अगेन ही इज वॉरेन बफे, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स ऑफ ऑल टाइम, हमने बात करी थी। किसी ने उनसे पूछा था मीडिया में कि सर अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स के सबसे दो इंपॉर्टेंट चीजें बतानी हो लोगों को तो आप क्या बताओगे? तो वॉरेन बफे ने बोला कि मैं ये दो चीजों के बारे में बात करूंगा। दो रूल्स हैं जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। रूल नंबर वन, नेवर लूज मनी। एंड रूल नंबर टू, नेवर फॉरगेट अबाउट रूल नंबर वन। कि भाई रूल नंबर वन को कभी भूलना नहीं है, और रूल नंबर वन बोलता है कि अपने पैसे को कभी खोना नहीं है, मतलब नेवर डू एनीथिंग जहां से आपको पैसा लॉस हो। तो इवन वॉरेन बफेट कंसिडर कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज आई सेड कि कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है। आपका टैक्स सेविंग्स, आपकी रेगुलर इनकम आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो दैट्स परफेक्टली ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेफ्टी का मतलब क्या है, मतलब व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विद द वर्ड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी? अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं चाहता हूँ आप सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज अब हमारे ना कुछ एजम्पशंस है लाइफ में, कुछ हम लोगों ने एब्जॉर्व करें हमारी सराउंडिंग से, या जो भी कह लीजिए, कुछ एजम्पशंस है, उसको हम अभी चैलेंज करेंगे। सो आई आई जस्ट वांट कि आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, देन वी विल कनेक्ट दिस विद आगे की जो स्लाइड्स हैं। अब सेफ्टी का ना दो मतलब होता है। एक मतलब होता है रियल में सेफ्टी, कि यार मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है कहीं वो इन्वेस्टमेंट का लॉस ना हो जाए। सो दैट इज द फर्स्ट मीनिंग ऑफ सेफ्टी, एंड विच इज ऑब्वियसली अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द सेकेंड मीनिंग, जो नॉर्मली लोग बात नहीं करते बट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, इज द वैल्यू ऑफ मनी। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि सपोज आपके पास 100 रुपीज का नोट है। वो 100 रुपीज का नोट या आप एक लॉकर में रख देते हैं अपने घर में या फिर बैंक के लॉकर में, और उस 100 रुपीज के नोट को 10 साल के बाद निकालते हैं। तो मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, क्या वो 100 रुपीज नोट की वैल्यू सेम रहेगी 10 साल बाद? प्लीज टाइप यस और नो, चैट बॉक्स में टाइप करिए यस या नो। नोट वो 100 रुपीज का ही रहेगा, ऑब्वियसली नोट चेंज नहीं हो सकता, मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ। नो, नो, करेक्ट। क्यों नहीं सेम रहेगा? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से, या फिर हम इन्फ्लेशन को हिंदी में बात करें, महंगाई, महंगाई की वजह से उस 100 रुपीज की वैल्यू हर साल गिरती रहेगी। अगर आप देखेंगे तो इंडिया में एक हिस्टोरिकल एवरेज देखेंगे तो 6 to 7% का लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन का एवरेज है। यानी कि हर एक चीज हर साल 6 से 7% ऑन एन एवरेज बढ़ती है। जरूरी नहीं सारी चीजें इतनी बढ़े, कुछ कम भी हो सकती हैं, कुछ ज्यादा भी हो सकती है, बट ऑन एन एवरेज 6 से 7% से इंडिया का हिस्टोरिकल इन्फ्लेशन रेट रहा है। अब इसका मतलब क्या है? यानी कि अगर आपके पास 100 रुपीज 1980 में थे, और अगर आपने उस पैसे को रख दिया था, और उस पैसे को आज 2024 में निकालते हैं, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 2 रुपए से भी नीचे होती है। यानी कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज बीन लॉस्ट। यानी कि जो सामान आप 100 रुपए से खरीद सकते थे 1980 में, अगर आज आप जाओगे तो वो सामान की वैल्यू 2 रुपए भी नहीं होगी। सो आप 100 रुपीज सेम है, बट आपकी वैल्यू गिरती चली जा रही है। अब अगर इन्फ्लेशन का रेट 6 से 7% है ऑन एन एवरेज, अभी हम लेटेस्ट इन्फ्लेशन की बात करें तो 5 to 6% है, बट ऑन एन एवरेज की बात करूं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इन्फ्लेशन का रेट 6 से 7% है, और अगर बैंक की एफडी का रेट, अगर हम बात करें बड़े बैंक्स की एफडी का रेट 7% है, छोटी बैंक्स का 8.2 और कॉर्पोरेट एफडी 7, तो 7 से 8, 8.5 तक एफडी के रेट्स हैं, 1 ईयर के एफडी के रेट्स हैं। तो
क्या मेरी वेल्थ क्रिएट हो रही है एफडी में पैसा जमा करने पे? अब इसको समझते हैं। एफडी में जो इनकम आपको अर्न होती है वो आपकी टैक्स, आपको एज पर टैक्स स्लैब आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर आप 10% टैक्स ब्रैकेट में तो 10% टैक्स, 20% पे हो तो 20%, 30% टैक्स ब्रैकेट में तो 30% टैक्स। तो अगर आपने एक बड़े बैंक में एफडी कराई, फॉर एग्जाम्पल एसबीआई बैंक में आपने एफडी कराई 1 साल की 7%, और अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो यानी कि साल के एंड में आपको 7% पे 30% टैक्स देना पड़ेगा। दैट इज 4.9% विल बी योर इन हैंड रिटर्न। दिस विल बी योर इन हैंड रिटर्न, दिस वन। ठीक है, ये है पोस्ट टैक्स। अब इसमें अगर हम इन्फ्लेशन जोड़ दें, अब हम यहाँ पे ऑन ए कंजर्वेटिव साइड 5% इन्फ्लेशन कंसिडर करें, ऑन ए लोअर साइड मतलब 5 to 6% अभी रिसेंट इन्फ्लेशन भी है, तो हमने लेटेस्ट इन्फ्लेशन 5% ऑन ए लोअर साइड पकड़ा है। अब इसमें 5% का इन्फ्लेशन इम्पैक्ट भी देंगे तो 4.9 में 5% अगर इन्फ्लेशन जोड़ दें तो आपका जो रिटर्न आ रहा है वो -0.1% आ रहा है। यानी कि अगर बैंक में अगर आपने 1 साल के लिए एफडी करी, अगर आपने 1 लाख रुपए की एफडी करी, 7% इंटरेस्ट मीन 7,000 रुपीज आपको मिलेंगे। उस 7,000 में 30% टैक्स आप देंगे, यानी कि 2,100 रुपीज आप गवर्नमेंट को देंगे, 4,900 रुपीज आपके पास बचेंगे। उस 4,900 में अगर आप इन्फ्लेशन देखेंगे तो 1 लाख की वैल्यू 1,05,000 हो चुकी होगी इन्फ्लेशन की वजह से। तो अगर आप -5,000 करेंगे तो -1,000 इज या रियल रिटर्न इन योर हैंड। ये आपके हैंड में रियल रिटर्न है, यानी कि माइनस में। सो एफडी करके अगर आप टैक्स और इन्फ्लेशन को काउंट फॉर करेंगे तो मनी इज डी ग्रोइंग, दिस इज डी ग्रोइंग। स्पेशली इफ यू आर इन 30% टैक्स ब्रैकेट। अगर आप 10% के टैक्स ब्रैकेट पे 20%, देन यू आर इंक्रीजिंग। आपका फिर पोस्ट टैक्स रिटर्न और पोस्ट इन्फ्लेशन रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, 1%, 1.2% ये है। बट अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में तो नहीं है। तो दिस इज अ रियल चैलेंज। अब ये तो एक चैलेंज हुआ जो करंट सिनेरियो है। अब बात करते हैं सेकंड चैलेंज की। सेकंड चैलेंज है कि इंडिया में अगर आप देखेंगे तो हिस्टोरिकली हर 10 सालों में 3% से इंटरेस्ट रेट्स घट रहे। 1991 में 15% इंटरेस्ट रेट्स हुआ करते थे, 2001 में इट वाज 12%, 2011 में 9%, 2021 में इट वाज अराउंड 6%। अभी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन लास्ट के 1-2 सालों में बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड इन्फ्लेशन थोड़ा सा रेट बढ़ गया है। बट ऑन ए ब्रॉडर सेंस एवरी 10 ईयर्स में इंटरेस्ट रेट 3% से गिर रहा है। आप में से कितने लोगों ने आज से 8-10 साल पहले एफडी या पीपीएफ कराया होगा? तो कितने लोग एग्री करते हैं उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट 9-10% मिल जाता था? प्लीज टाइप एग्री इफ यू एग्री। आप लोगों को अगर याद हो कि भाई आज से 10 साल पहले या 15 ईयर्स पहले एफडीज पे पीपीएफ में 9-10% इंटरेस्ट आसानी से मिल जाता था। अराउंड 8-9, ओके एग्री। ओके सो क्योंकि 2001 और 91 काफी पुराना हो जाएगा, सो यू कैन चेक देयर हैज बीन अ टाइम जब पीपीएफ और एफडीज में 12%, 14% भी रिटर्न होते थे। सो पास्ट में ऐसा हो चुका है। सो दिस इज अ ट्रेंड। अब इसके साथ साथ क्या प्रॉब्लम है कि जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स की फॉर डेवलप नेशंस, जैसे जैसे देश जो डेवलप हो चुके हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, यूएस, यूके, इनके अगर आप लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स देखेंगे ना तो वो 0.5 से लेकर 1%, 2% के रेंज में। एक्सेप्शनल इज द लास्ट 1-2 ईयर्स में बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, इन्फ्लेशन रेट अक्रॉस वर्ल्ड बढ़ गए थे, तो वहां पे अब इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ चुके हैं 3, 3.5, 4% तक। बट हिस्टोरिकली जितने भी डेवलप नेशंस हैं उनके इंटरेस्ट रेट 2-3% से नीचे ही रहे हमेशा। तो पॉइंट ये कि जब इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग, जब इंडिया डेवलप हो जाएगा आफ्टर 10 और 20 ईयर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया में एफडी के रेट्स या इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे? सो फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 10 ईयर्स व्हाट यू थिंक, सो क्या होगा किसी को पता नहीं है। बट एज इंडिया गेट्स डेवलप आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया के इंटरेस्ट रेट्स होंगे आफ्टर 10 ईयर्स? यू कैन राइट एनी नंबर वट एवर यू फील लाइक। सो व्हाट यू फील, इट इज 2%, 3%, 1%? What is the number you think will be interest rates in India after 10 years? 4.5, same. Okay, 5. Okay. सो अभी भी काफी ऑप्टिमिस्टिक है आप लोग, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया डेवलप होगा इंटरेस्ट रेट्स विल कम डाउन। इट हैपेंस विद एवरी डेवलप नेशन। सो हो सकता है 10 ईयर्स में, मैं नहीं कह रहा 3% होगा, बट
आई थिंक इट विल बी बिलो 5% फॉर श्योर, 4 से नीचे होगा, एंड उसके आगे तो शायद और भी कम होगा। आई थिंक दैट इज द ट्रेजेक्टरी एटलीस्ट व्हाट इट सीम्स लाइक। अब क्वेश्चन आता है कि एज ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हम लोगों को पैसा इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने बात करी पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक काफी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स इस चीज को ध्यान नहीं रखते, बट मुझे लगता है रखना चाहिए कि आपका बिजनेस मनी और आपका पर्सनल मनी शुड बी सेपरेट। तो डोंट मिक्स बोथ, डोंट मिक्स योर बिजनेस मनी और बिजनेस कैश फ्लोज विद योर पर्सनल कैश फ्लोज। आप बिजनेस में क्या करो दैट इज सेपरेट, उससे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स के लिए अलग से कैश फ्लोज जनरेट करो, आप अलग से मतलब उसको की करो। बिजनेस से अगर आपको विड्रॉ करना है थोड़ा अमाउंट आप करो, और अपने फैमिली का या आपका जो भी फाइनेंशियल गोल्स है उसको आप अलग से ध्यान रखो। तो इसलिए आपको बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को अपने पर्सनल गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सेकंड, आपको अगर अपना बिजनेस गोल है, आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, आपको लगता है कि हाँ मुझे बिजनेस को एक्सपैंड करना है, नया शोरूम लेना है, एक नई ज्योग्राफीज में जाना है, तो आपको एक फंड की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने अलग से कुछ फंड इन्वेस्ट करके रखा है, वो ग्रो कर रहा है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। टैप मार्केट अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट बिजनेस। अब आप एक या दो या तीन बिजनेस तो रन कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। बट अगर आपको लगता है कि मार्केट में ऐसे बिजनेसेस हैं जो फ्यूचर हैं, इट कुड बी ईवी, इट कुड बी एआई, इट कुड बी रिन्यूअल थीम्स इन जनरल, सो कोई भी थीम है आपको लगता है कि यस दे कैन डू वेरी वेल, तो इनमें अगर आपको ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना है तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही कर सकते हो। देन क्रिएट पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम मतलब वो इनकम होती है जहां पे आपको एक्टिवली कुछ ना करना पड़े, बट आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको इनकम हो रही हो। जैसे रेंटल इनकम, जैसे इंटरेस्ट इनकम, आपने एफडी करी वहां से ऑलरेडी आपको इनकम आ रही है, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी आपको रेंट आ रहा है, दैट इज रेंटल। सो दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। तो ये चार मेजर रीजंस हैं जो एंटरप्रेन्योर्स को इन्वेस्ट आई थिंक करना चाहिए, बिकॉज ऑफ दीज 4 रीजंस। अब मैं सब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ये टॉप 5 रिचेस्ट इंडियंस हैं, आप में से कितने लोग इनमें से जानते हो किसी को? तो यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स एनीथिंग, कोई भी नाम, एक नाम, दो नाम, तीन नाम, जो भी आप लोग को लगता है आपको पता है, आप प्लीज डाल सकते हैं। सो दीज आर द टॉप 5 रिचेस्ट इंडियंस एज ऑफ नाउ। तो यू कैन राइट अ नेम, वट एवर यू थिंक आर द नेम ऑफ दीज पीपल। आई थिंक फर्स्ट और सेकंड तो बहुत ही इजी है, बाकी भी इजी है, बट इट मे नॉट बी नेसेसरी। अंबानी, मिसेस जिंदल, नादर, ओ वंडरफुल, शिव नादर, वंडरफुल। सो यस, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैज गेस इट राइट। बस लास्ट वाला दिलीप सांघवी आप नहीं जानते, वो सन फार्मा के प्रमोट ओनर हैं। सो दीज आर द टॉप 5 रिचेस्ट इंडियंस। अभी लिस्ट चेंज होती रहती है, इट्स ओके। सो मुकेश अंबानी, अदानी, मिस सावित्री जिंदल, शिव नादर ऑफ एचसीएल टैक, एंड देन मिस्टर दिलीप सांघवी ऑफ सन फार्मास्यूटिकल। सो दीज आर उनकी नेटवर्थ एंड एवरीथिंग, ये उनकी सब नेटवर्थ है। अब क्वेश्चन ये कि मैंने ये पॉइंट क्यों रेस किया, पॉइंट ये कि अब हम लोगों को अगर वेल्थ क्रिएट करनी है, तो बेस्ट थिंग इज कि जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जिन्होंने बहुत वेल्थ क्रिएट करी, हम उनको उनसे सीख लेते हैं ना, वाई टू री इन्वेंट द व्हील। जो ऑलरेडी लाइफ में इतने सक्सेसफुल है उनसे सीख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे इन सब में एक चीज कॉमन है, एक या दो चीज कॉमन है। पहला, दीज ऑल आर एंटरप्रेन्योर्स, इसमें से कोई बंदा जॉब नहीं करता, दे आर ऑल एंटरप्रेन्योर्स, एंड मोस्ट ऑफ देम आर इन्वेस्टर्स ऑल्सो। कहीं ना कहीं वो और बिजनेस में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो खुद तो कोई बिजनेस मैनेज कर ही रहे हैं, ग्रुप्स मैनेज कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ एक्टिवली वो बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं दूसरी कंपनीज में भी। तो अगर हमें इनके मॉडल को फॉलो करना है, या हमें रिच बनना है, या हमें वेल्थ क्रिएट करनी है, तो कहीं ना कहीं दिस इज द वे। अब ये चार हमारे इनकम के सोर्सेज होते हैं, एक्टिव और पैसिव में डिवाइड होता है। एक्टिव इनकम मतलब एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड मतलब अगर हम कोई जॉब करते हैं देन इट मीन्स कि हम एम्प्लॉयड हैं। अगर हम अपना बिजनेस रन कर रहे हैं बट सब कुछ हमारे पे डिपेंडेंट है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। आई थिंक ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, जो बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड में कंफ्यूज कर जाते हैं। लोगों को लगता है हम बिजनेस कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ अस आर सेल्फ एम्प्लॉयड। बिजनेस क्या होता है? पैसिव इनकम। बिजनेस मीन्स कि आपने कोई ऐसा सिस्टम सेटअप कर रखा है जहां पे आप वहां जाओ या ना जाओ फिर भी लोग आपके बिहाफ पे काम कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं। एंड देन फोर्थ कम्स इन्वेस्टर। तो पहले जो दो कॉलम्स हैं वो एक्टिव सोर्स हैं, एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड। मीन्स आपको एक्टिवली टाइम देना पड़ेगा, आप मेहनत करेंगे, उसके प्रोपोर्शन में आपको इनकम आएगी। ये जो दो सोर्स हैं वो पैसिव सोर्स हैं। यहाँ पे क्या है, आपने बिजनेस सेटअप कर लिया, आपने टीम रख लिया, आपने मैनेजर रख लिया, वो बिजनेस रन कर रहे हैं, आपसे मैनेज कर रहे हो, या फिर आपने दूसरी कंपनीज या
उसमें इन्वेस्ट कर लिया और आप वहां से इनकम अर्न कर। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे जितने भी वर्ल्ड के रिचेस्ट या इंडिया के रिचेस्ट हैं वो ये काम करते हैं, दे हैव अ बिजनेसेस और दे आर इन्वेस्टर्स। सो हमें कहीं ना कहीं इनका ही मॉडल टेम्पलेट फॉलो करना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, मतलब ये तो समझ में आ गया, हमें बिजनेसेस हम कर ही रहे हैं ऑलरेडी या हमें इन्वेस्टिंग भी करनी चाहिए सो दैट वी कैन क्रिएट वेल्थ। बट सिर्फ बिजनेस करने से ही वेल्थ आ जाएगी? सो अब ये कुछ हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने एक टाइम पे बहुत वेल्थ कमाई थी, बट ये सारी की सारी वेल्थ खो दी। विजय माल्या, मुकेश अंबा, सॉरी, इट शुड बी अनिल अंबानी, माय मिस्टेक, दिस इज रॉन्ग इन प्रेजेंटेशन, इट्स अनिल अंबानी। रामलिंगन राजू इज ऑफ सत्यम, देन नीरव मोदी, एवरीबॉडी नोज अबाउट नीरव मोदी और मेहुल चौस्की का। तो पॉइंट ये है कि सिर्फ पैसा कमाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। पैसा इन लोगों ने भी बहुत कमाया था, करोड़ों में कमाया था, मतलब 100 and 1000 करोड़। आप जो पैसा कमाते हैं उसको क्या कर रहे हो वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट, इफ नॉट मोर। मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मैं कहूंगा चलो इक्वली इंपॉर्टेंट हुए। तो फर्स्ट स्टेप है आप पैसा कैसे अर्न कर रहे हो उस पर फोकस कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप है उस पैसे का क्या करना है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब अभी का जो हमारा नेक्स्ट वाला जो पार्ट ऑफ द सेशन है इज ऑन द सेकेंड पार्ट, कि हम, बिकॉज इनकम तो आप लोग कर रहे हो, आप लोग बिजनेसेस कर रहे हो, आप लोग कुछ ना कुछ इनकम कमा रहे हो, तो वो लोग आप चीज, वो सब चीजें आप कर रहे हो। हमारा अब जो सेकेंड जो पार्ट है सेशन का इज ऑन दैट, कि उस इनकम से हम क्या कर सकते हैं सो दैट अपनी वेल्थ को ग्रो कर सके, अपनी वेल्थ को ग्रो कर सके। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, ये 43 ईयर्स का डेटा है, 1980 से लेकर 2023 तक। सो दिस इज 43 ईयर्स डेटा। अब 43 ईयर्स के डेटा में जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया में इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो 7.22% है। ये 43 ईयर्स का एवरेज है। एफडी का रिटर्न ऑन इन 43 ईयर्स एवरेज बेसिस, ये 43 ईयर्स का हमने एवरेज निकाला है कि पहले ज्यादा था अब कम हुआ, तो ये 7.3% है। पीपीएफ का 43 ईयर्स का एवरेज नंबर 7.35 है। सिल्वर ने 8% रिटर्न दिया है, गोल्ड ने 9% दिया है, रियल स्टेट ने 10+ रिटर्न दिया है। सो रियल स्टेट में थोड़ा सा मेजर करना मुश्किल है क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन सिटी टू सिटी, प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी, तो थोड़ा सा नंबर मुश्किल है। बट एक ईटी मनी का सर्वे हुआ था जहां पे उन्होंने टॉप 20 सिटीज ऑफ इंडिया का सर्वे किया था और लॉन्ग टर्म एवरेज निकाला था, दैट केम 10 to 12% की रेंज में। और इक्विटी का रिटर्न जो है 43 ईयर्स का 16.11% है। तो अब हम देख सकते हैं कि अगर हम इन्फ्लेशन को सामने रखें तो एफडी पीपीएफ हैज हार्डली बीटन इन्फ्लेशन, सिल्वर एंड गोल्ड हैव जस्ट बीटन द इन्फ्लेशन, रियल स्टेट हैज बीटन द इन्फ्लेशन एंड इक्विटी हैज बीटन द इन्फ्लेशन। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म में रियल स्टेट और इक्विटी दो ही ऐसे एसेट क्लास है जिन्होंने इन्फ्लेशन को आसानी से बीट किया है। इन्फ्लेशन को बीट करना क्यों जरूरी है वो हमने समझा, कि हमने वाई इन्फ्लेशन इज इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेशन को समझना जरूरी है, इन्फ्लेशन को बीट करना क्यों जरूरी है। तो अब हम आज थोड़ा सा बात करेंगे इक्विटी वाले साइड पे, दैट विल बी द मेजर पार्ट ऑफ आवर सेशन एंड दैट विल बी ऑन द इक्विटी साइड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज इक्विटी, व्हाट इज स्टॉक, इक्विटी का मतलब होता क्या है। Equity simply means owning a part share in the company where we want to invest. तो इक्विटी या स्टॉक हम एक ही बात कर सकते हैं, इक्विटी को इक्विटी शेयर कैपिटल भी बोलते हैं या स्टॉक भी बोल सकते हैं। तो किसी कंपनी में अगर आपको ओनर बनना है तो उसकी हिस्सेदारी के लिए आप कुछ भी अमाउंट पे करते हैं और उसके बदले में आपको कुछ शेयर्स मिल जाते हैं, कुछ क्वांटिटी ऑफ शेयर्स मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विटी, यानी कि आपने उस कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट करा है। अब इक्विटी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? इक्विटी में इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमने देखा उसका एवरेज रिटर्न्स अच्छे रहे। इक्विटी में इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि अपसाइड की कोई कैपिंग नहीं होती। अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो, पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको पता है कि आपको 8% 9% रिटर्न मिलेगा, दैट्स अपसाइड कैपिंग। कितना भी इकोनॉमिक ग्रो करे आपको रिटर्न उतने ही मिलने वाले हैं। एम्स टू प्रोवाइड बेटर इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न, हमने बात करी कि इन्फ्लेशन को बीट करना है तो कहीं ना कहीं इक्विटी इज वन ऑफ द गुड एसेट क्लास। कंसिस्टेंट कैश फ्लो इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, इक्विटी में अगर आप किसी कंपनी में इक्विटी के पार्टिसिपेट बनते हो तो आप एक तरीके से को ओनर बन रहे हो। तो अगर वो कंपनी प्रॉफिटेबल है और अगर मैनेजमेंट डिविडेंड डिक्लेयर करती है आउट ऑफ दोज प्रॉफिट्स तो आपको एक कैश फ्लो ऑफ स्ट्रीम भी मिल जाती है।
जरूरी नहीं सारी कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर करें, बट जो वेल स्टैब्लिश कंपनीज हैं, जो पुरानी कंपनीज हैं, वो नॉर्मली हर साल कुछ ना कुछ डिविडेंड जरूर देती है। तो आपको एक कैश फ्लोज भी आ सकता है अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अब एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा की बात करते हैं। इंडिया का मार्केट कैप करेंट सिनेरियो में 3.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। मैं पूरे इंडिया के जीडीपी की बात करूं, पूरे इंडिया की। आपको पता है एप्पल कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? इट इज 3 ट्रिलियन डॉलर। अब आप इसका मतलब समझ रहे हैं व्हाट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। यानी कि एप्पल एक प्राइवेट कंपनी जो फोन और इन सब चीजों में है, उसकी वो जो जलती है इसलिए क्योंकि धूप है, तो शेड में रहने की उनको कब हरा होता है। हेलो, आई विल रिक्वेस्ट एवरी पार्टिसिपेंट्स टू प्लीज म्यूट कर लें, सो देयर इज सम नॉइस कमिंग। ओके, थैंक यू। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि एप्पल कंपनी का जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप मतलब एप्पल कंपनी की वैल्यू, ऐसे समझ सकते हो कि अगर आज आपको एप्पल कंपनी पूरी खरीदनी है, पूरी की पूरी एप्पल कंपनी खरीदनी है, तो आपको 3 ट्रिलियन डॉलर्स देने पड़ेंगे, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इंडिया जीडीपी। यानी कि पूरे इंडिया को अगर हम मिला दें, पूरी इंडिया की बात करूं, हमारी करंट जीडीपी इज नियर टू एप्पल्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। यानी कि दिस इज द पोटेंशियल। सो अगर हम इन टर्म्स ऑफ जीडीपी बात करेंगे तो इट इज ह्यूज। यानी कि अगर कंट्री वाइज मेजर करेंगे तो एप्पल इज करेंटली नाउ द फिफ्थ कंट्री यू कैन से इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। और बहुत सारी कंट्रीज लाइक डेवलप नेशन लाइक जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, वो सब एप्पल के मार्केट कैप से भी छोटी है। तो स्टॉक्स में ना अपसाइड की कोई लिमिट नहीं है, इट कैन गो टू एनी लिमिट। अब मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये इंडिया के कुछ स्टॉक्स हैं लास्ट 10 ईयर्स के जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर आपने 10 साल पहले इन कंपनीज में 1 लाख रुपीज डाले होते, फॉर एग्जाम्पल KI इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया, टाइटन, एग्जाम्पल्स हैं कुछ, तो 1 लाख रुपीज आपके वारी रिन्यूअल्स में 90 लैक्स बन चुके होते, ज्योति रेजिन्स में 53 लैक्स, KI इंडस्ट्रीज में 23 लैक्स, बजाज फाइनेंस में 34 लैक्स, ऐसी करके एग्जाम्पल्स। तो 1 लाख रुपीज हैज मल्टीप्लाइड बाई 10 मच अमाउंट। ये 10 साल के एक्चुअल रिटर्न है, ये एक्चुअल में हो चुका है। और अगर हम, ये तो स्पेसिफिक स्टॉक्स की रिटर्न है, अगर हम पूरे सेंसेक्स की रिटर्न की बात करें, अब सेंसेक्स का मतलब क्या होता है? सेंसेक्स इज एन इंडेक्स जहां पे टॉप की जो 30 कंपनीज होती है उनका ये पैरामीटर होता है। तो BSE में जो इंडेक्स होता है उसको सेंसेक्स बोलते हैं। तो उन 30 कंपनीज के प्राइसेस ऊपर या नीचे जाते हैं तो सेंसेक्स की वैल्यू ऊपर या नीचे जाती है। तो 1937 में, 1979 में सेंसेक्स 100 पॉइंट्स का था। और अगर हम आज लेटेस्ट बात करें, जैसे कल सेंसेक्स क्लोज हुआ 76,000 पॉइंट्स में। तो अगर हमने 1 लाख रुपीज 1979 में सेंसेक्स में इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू आज 7 करोड़ 69 लाख 92,000 हो चुकी होती। यानी कि इसका अगर हम रिटर्न कंप्यूट करें तो अराउंड 16% के आसपास आता है, जो कि हमने लास्ट अभी बात भी किया था कि 43 ईयर्स का डेटा ये है, दिस इज नाउ 44 ईयर्स डेटा, इज अराउंड 16%। तो सेंसेक्स ने इतना ज्यादा रिटर्न दिया है। अब क्वेश्चन ये कि ये तो पास रिटर्न्स है कि लास्ट लास्ट 44 ईयर्स में सेंसेक्स ने ये रिटर्न दिया है। आगे क्या लगता है, व्हाट व्हाट आगे हमें ये ऐसे रिटर्न्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आगे इंडिया की ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, वो क्या है? तो लेट अस सी सम नंबर्स, लेट अस सी कि इंडिया आज कहाँ खड़ा हुआ है और इंडिया आगे इकोनॉमिकली ग्रोथ वाइज कैसे पोजीशन है। तो लेट अस सी सम नंबर्स। अब हमने बताया था कि जैसे इंडिया की 3.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, 4 ट्रिलियन डॉलर इट विल अचीव बाय मार्च 25, एंड बाय 2030 इट इज एक्सपेक्टेड कि इंडिया विल अचीव ए जीडीपी ऑफ 10 ट्रिलियन डॉलर, एंड इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। सो दीज आर ऑल द नंबर्स, प्लस माइनस 1-2 साल हो सकता है, इट्स अगेन ऑन एन एस्टिमेट बेसिस। इंडिया इज नो डाउट द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इस समय इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अब इंडिया की स्टोरी आने आने वाले सालों के लिए भी क्यों अच्छी लग रही है, क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत ये चार्ट ये चीज डिपेंड करेगा। सो इंडिया का अगर आप देखेंगे तो जो इंडिया का मीडियन एज है पॉपुलेशन का वो 29 ईयर्स है। यानी कि पूरी पॉपुलेशन का अगर हम एवरेज आउट करेंगे तो इंडिया का जो पॉपुलेशन का एज है मीडियन वो 29 ईयर्स है। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे बाकी कंट्रीज से, तो बाकी कंट्रीज का एज बहुत ज्यादा है।
फॉर एग्जाम्पल चाइना का मीडियन एज 37 है, यूएस का 37.9 है, यूरोप का 42 है, जापान का 46 है। अब इसका मतलब क्या है? सिंस इंडिया इज ए यंग कंट्री, यानी कि बहुत सारा सेक्शन, मेजोरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज में आती है, फ्रॉम 22 to 60 जो हमारी वर्किंग एज है, और उनके पास बहुत सारा समय अभी बचा हुआ है वर्किंग एज का, यानी कि उनके पास बहुत टाइम बचा हुआ है जब वो काम करेंगे या फिर जब वो अर्न कर सकते हैं। जैसे जैसे कंट्री थोड़ी एज वाइज बड़ी होती है, जैसे जापान 46 से 42 है, इन कंट्रीज का प्रॉब्लम क्या होता है कि ग्रोथ रुक जाती है, बिकॉज रिटायरमेंट वाले लोग ज्यादा होते हैं और अर्निंग वाले लोग कम हो जाते हैं, तो स्पेंडिंग कम हो जाती है। सो इंडिया में अभी ऐसा अज्यूम है कि आने वाले काफी टाइम तक इंडिया का जो वर्किंग एज है वो बहुत हाई वर्ल्ड में रहेगा। तो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया की, तो मोर देन 50% पॉपुलेशन इज इनटू वर्किंग एज जोन, जबकि वर्ल्ड का जो एवरेज है वो 45% है। एंड वर्ल्ड का जो एवरेज है वो गिरता जा रहा है, और इंडिया का एवरेज अभी काफी टाइम तक 50 के ऊपर ही रहने वाला है। सो इट्स ए वेरी गुड साइन कि इंडिया में आने वाले टाइम पे जो ग्रोथ हो रही है, चांसेस है वो ग्रोथ होती रहेगी। सेकंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, जहां पे इस चार्ट में डिवाइड करके दिखा रहे हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितना अर्न करती है। तो ये 2015 का ग्राफ है, जहां पे हम बताते हैं कि 2015 में 1.1 बिलियन लोग ऐसे थे जो साल का $2000 भी नहीं कमा पाते थे। दिस इज द सेक्शन 2015 का। $2000 मीन्स, अगर हम आज का भी रेट पकड़े तो साल का 1.5 लैक्स भी नहीं कमाते थे। 1.5 टू 1.6 लाख, अगर 80 रुपीज हम डॉलर माने तो भी है। और 102 मिलियन पीपल ऐसे थे जो 2000 से 5000 कमाते थे, यानी कि 1.5 1.6 से लेकर ऑलमोस्ट 3 to 4 lakhs। और सिर्फ 25 मिलियन लोग ही ऐसे थे जो साल का 5000 से ज्यादा, $5000 से ज्यादा कमाते थे, यानी कि 4 लाख से ऊपर कमाते थे। 2021 में ये 1.1 बिलियन जो पॉपुलेशन है लोअर साइड, इट गॉट रिड्यूस टू 766 मिलियन। एंड जो मिडिल, हम जो मिडिल क्लास बोलते हैं, इट इंक्रीज्ड बाय 5 times to 516 मिलियन पीपल। एंड अपर वाले सेक्शन में भी ये इंक्रीज हो गया। अब यही ट्रेंड एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम पे लोग, मोर एंड मोर पीपल विल शिफ्ट फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड ऑल्सो फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो यहाँ पे भी लोग बढ़ेंगे, यहाँ पे भी लोग बढ़ेंगे, और यहाँ पे लोग कम होंगे। पॉवर्टी, या जो हम बोलते हैं ना बेसिक नीड से, लोग कम होते जाएंगे। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है, मतलब हाउ डज इट मेक सेंस इन टर्म्स ऑफ इंडिया और इंडियाज ग्रोथ स्टोरी? It makes sense because as and when more and more people get earn more, they will spend more. They will spend more means इकोनॉमी में वो पैसा आएगा, और वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, और ये पैसा सर्कुलेट होगा। सो इट, पूरी की पूरी इकोनॉमी इससे एक होता है ना, पॉजिटिव मोमेंटम में आती है। तो जैसे जैसे लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे, वो ज्यादा स्पेंडिंग ऑब्वियसली सबके बिजनेसेस में जाएगा, और वहां से वो अर्न करेंगे, एंड देन ये साइकिल एक चलती रहती है पॉजिटिव साइड में, जब तक कि नंबर्स अदर वे राउंड ना हो जाए। अब आपको एक नंबर और दिखाना चाहता हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, कि अगर हम इंडिया का करंट सिनेरियो देखें एंड सी कि व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो कि फोर व्हीलर यूज कर रही है, जो कि एयर कंडीशनर यूज कर रही है, जो कि रेफ्रिजरेटर यूज कर रही है, या स्मार्टफोन यूज कर रही है, एंड व्हेन वी कंपेयर इट विद चाइना एंड यूएसए, देन इट सिंपली मीन्स देयर वेरी वेरी लॉन्ग वे टू गो। इंडिया में सिर्फ 4% पॉपुलेशन पे फोर व्हीलर्स है, चाइना में ये नंबर 15% है, और यूएसए में 81%। एयर कंडीशनर्स की बात करें, इंडिया में सिर्फ 8% घर पे एयर कंडीशनर्स हैं, चाइना में 60 एंड यूएसए में 90%। तो हम देख सकते हैं हर एक चीज में इंडिया इज वे वे बिहाइंड चाइना एंड यूएसए, एंड विच इज अ गुड साइन, बिकॉज इट मीन्स कि इतनी डिमांड अभी है, इतनी डिमांड और आ सकती है, इतना और लोग कंज्यूम कर सकते हैं, इतना स्कोप वहां पर है। और सो इट शोज ए वेरी, हेलो, आई विल रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए, बीच में थोड़ा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज म्यूट योर माइक्स। सो दिस इज व्हाट इंडिया का ग्रोथ स्टोरी दिखता है आने वाले टाइम पे। तो हमने बात किया कि लास्ट 40 ईयर्स में इतने अच्छे रिटर्न्स आए। व्हाट अबाउट नेक्स्ट 20 30 40 ईयर्स? इट लुक्स वेरी वेरी गुड, इट लुक्स वेरी वेरी गुड। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों का व्यू क्या लगता है, आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया यहाँ से नेक्स्ट 20 ईयर्स में
ज्यादा ग्रो करेगा या जो भी करंट सिचुएशन है उससे खराब सिचुएशन में होगा। अगर आपको लगता है कि ज्यादा ग्रो करेगा तो प्लीज टाइप ग्रो। अगर आपको लगता है कि नहीं यहां से खराब सिचुएशन होगी, इससे ज्यादा खराब सिचुएशन हो जाएगी, तो प्लीज टाइप नो। तो राइट ग्रो अगर आप एग्री करते हैं इस बात से कि आने वाला नेक्स्ट 10-20 ईयर्स इज वेरी वेरी गुड फॉर इंडिया। ग्रो ग्रो। कैन वी गेट योर पीपीटी? ओके विल सी। हम आप लोग देखेंगे, विल विल लेट यू नो। विल सी हम पीपीटी शेयर कर पाए तो विल डेफिनेटली ट्राई टू सी। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा है और इक्विटीज में इतने अच्छे रिटर्न्स आते हैं और इंडिया की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, देन व्हाई पीपल डोंट इन्वेस्ट बिग अमाउंट इन इक्विटी? या फिर काफी लोगों को आपने सुना होगा कि यार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था और हमें लॉस हुआ, हमने ऐसा कुछ करा था बट हमें लॉस हो गया। तो आप में से कितने लोगों ने ये सुन रखा है फ्रॉम देयर फ्रेंड्स और फैमिलीज और देयर बाय देयर ओन सेल्फ कि दे हैव मेड लॉसेस इन स्टॉक मार्केट? तो प्लीज टाइप लॉस अगर आपने ये सुन रखा है कि आपने किसी फ्रेंड से, फैमिली से, नोन से या खुद के साथ ऐसा हुआ हो कि यार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और हमने बोला कि यार उनको लॉस हो गया, अरे उनको बड़ा लॉस हुआ। तो प्लीज टाइप लॉस अगर आपने ये चीज सुन रखी हो तो। नो। ओके। सो प्लीज टाइप लॉस अगर आपने ऐसा सुन रखा हो तो। इट्स ओके अगर नहीं सुन रखा देन इट्स परफेक्टली ओके। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे थोड़ा सा चैट बॉक्स में एक्टिव रहिए, मजा आएगा तभी। मतलब आप लोगों की एनर्जी विल हेल्प मी रिफ्लेक्टिंग माई एनर्जी, तो प्लीज। लॉस ओके। ठीक है। तो आई गॉट द रिस्पॉन्सेज। कुछ का नो आया, कुछ का लॉस है। सो पॉइंट क्या है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा है, स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स भी अच्छे बनते हैं, फ्यूचर भी अच्छा है, देन व्हाट हैपेंस? मतलब लोग ऐसा कैसा होता है कि लॉस कर लेते हैं स्टॉक मार्केट में? इट हैपेंस बिकॉज मार्केट करेक्शन इज पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का हर चीज का एक फेज होता है एंड मार्केट करेक्शंस आर पार्ट ऑफ इक्विटी। मेरा ये मानना है कि लाइफ में हर चीज, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे लाइफ हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, हर चीज का एक फेज होता है। कभी अच्छा फेज होता है, कभी खराब फेज होता है। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में फेजेस होते हैं, साइकिल होते हैं। कुछ टाइम वो बहुत अच्छा करता है, फिर कुछ बुरी न्यूज आ जाती है, कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं, वॉर हो जाता है, कोविड आ जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि 2000 से लेकर अगर हम देखेंगे और 2023-24 तक सेंसेक्स ऊपर ही जा रहे हैं अगर हम लॉन्ग टर्म देखेंगे। बट बीच बीच में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आए थे, जैसे 2008 में एक बहुत अच्छा करेक्शन आया था। उसके बाद पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, तो काफी टाइम तक आप देखोगे कि यहाँ पे मतलब मार्केट बहुत रेंज बाउंड रहा। फिर डीमोनेटाइजेशन आया था तो मार्केट में करेक्शंस आया था। फिर कोविड आया तो वी हैव सीन अच्छा खासा करेक्शन आया था। तो पॉइंट ये है कि कोई ना कोई कारणवश से अभी ऑफ लेट हमने देखा था कि इलेक्शन वाली डे में सडनली जो एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं हुआ है, मार्केट एक दिन में बहुत ज्यादा करेक्शन लिया। तो बीच बीच में कुछ ना कुछ न्यूज आएगी, या तो वॉर से रिलेटेड या पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी या कुछ हो गया वर्ल्ड ओवर में, एंड मार्केट तब वो करेक्शन करता है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज पार्ट, मतलब इसमें कुछ नया नहीं है। आज से 40 साल पहले भी कुछ ना कुछ कारण होते थे, ये आगे भी होंगे, कारण चेंज हो सकते हैं। बट इट इज अ साइकिल, जैसे लाइफ में साइकिल होती है, बिजनेस में साइकिल होता है। हर एक सीजन अच्छा नहीं होता, ऑफ सीजन होता है, अच्छा सीजन पीक सीजन होता है। ऐसे ही बिजनेस में या स्टॉक मार्केट में भी साइकिल होती है। अब स्टॉक मार्केट में देखिए रिस्क तो है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि रिस्क नहीं है। अब रिस्क किस किस चीजों का है? दे कुड बी फ्यू रिस्क लाइक कंपनी रिस्क। भाई आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया, सपोज आपने अनिल अंबानी वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया था, फॉर सम रीजन वो कंपनी नहीं चल पाई, तो एक ये रिस्क हो गया। एक वॉलेटिलिटी रिस्क, जैसे मैंने बताया कि मार्केट में उतार चढ़ाव तो पार्ट है, तो कभी कोई न्यूज आ गई, खराब न्यूज आ गई तो वॉलेटिलिटी रहती है। लिक्विडिटी रिस्क, आपने कोई शेयर लिया बट वो शेयर को आप सेल नहीं कर पा रहे, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क। देन मार्केट रिस्क, एक जनरल मार्केट रिस्क है, मार्केट का सेंटीमेंट है, इन्वायरमेंट है, कोई न्यूज आ गई मार्केट में सडनली गिर गया, कोई वॉर की न्यूज आ गई, सो दीज आर ऑल रिस्क। अब इस रिस्क को हम
देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि खत्म कर सकते हैं, बट इसको मैनेज जरूर कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं। अब मैंने आपको एक एग्जांपल ये दिया कि टॉप स्टॉक्स जो परफॉर्मर थे वो कैसे किए लास्ट 10 ईयर्स में। अब मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे भी स्टॉक्स हैं जहां पे अगर आपने 1 लाख रुपए 10 साल पहले लगाए होते तो आपकी ऑलमोस्ट पूरी वैल्यू खत्म हो गई होती। यानी कि जैसे कॉक्स एंड किंग्स में अगर आज से 10 साल पहले, और वेल नोन कंपनी कॉक्स एंड किंग्स ट्रैवल की कंपनी थी, तो उनका 10 साल पहले शेयर प्राइस 188 था, आज की तारीख में 1 रुपीज है। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे होते तो आज उसकी वैल्यू 926 रुपए रह गई होती। यानी कि समझ गए। 99% से आपकी वेल्थ इरोड हुई होती। ऐसी रिलायंस कम्युनिकेशन हमने बात करी अनिल अंबानी की ग्रुप का, ऐसी वोडाफोन आइडिया, यस बैंक, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और ये कई कंपनीज बड़ी कंपनीज हैं, ये आज से 10-15 साल पहले एक बड़ी कंपनीज हुआ करती थी। तो स्टॉक मार्केट में एक रिस्क रहता है। डायरेक्ट स्टॉक में आप खरीदते तो रिस्क रहता है। अब रिस्क क्या रहता है, बिकॉज आपको इतनी सारी कंपनीज हैं, अब आपको उसकी रिसर्च करनी पड़ती है, फंडामेंटल देखना पड़ता है, टेक्निकल देखना पड़ता है, प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, आगे क्या कर रहे हैं, तो इट इज अ चैलेंजिंग जॉब। स्टॉक मार्केट में वॉरेन बफे का भी स्टेटमेंट है कि इन्वेस्टिंग इज इजी बट नॉट सिंपल। मैनेज करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट सिंपल नहीं है। इजी तरीका इजी है बट सिंपल नहीं है। आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, आप अपने आप को अपग्रेड करोगे तो फिर चीजें पॉसिबल होंगी, देन थिंग्स कैन बी डन। अब ये चैलेंजेस को मिटिगेट करने के लिए, सपोज आप सब बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपको लगता है कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, पर हमें टाइम भी नहीं देना है, हमें नॉलेज भी इतनी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला सिंपल तरीका है जो मुझे लगता है, एंड ट्रस्ट मी इट इज वेरी इफेक्टिव, इन्वेस्ट इन व्हाट यू कंज्यूम। आप जो कंपनी के प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हो, और अगर आपको लगता है कि आपके सर्कल में बाकी लोग भी वो काम कर रहे हैं, तो आप उन कंपनीज के शेयर खरीद सकते हो। दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट एंड ट्रस्ट मी इट्स ए इफेक्टिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज सिम यूज करते हो रिलायंस का या एयरटेल का, तो आपने उनके शेयर्स खरीदे। अगर आप बर्गर किंग में खा रहे हो, अगर आप डोमिनोज में पिज्जा खा रहे हो, तो आपने उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर लिया। अगर आप बाटा शूज पहन रहे हो या बाटा के सैंडल्स पहन रहे हो, तो आपने बाटा के शेयर्स ले लिए। अगर आप गाड़ी टाटा की चला रहे हो या मारुति की चला रहे हो, तो आपने उन कंपनीज के शेयर्स खरीद लिए। जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो, आप टाटा की चाय पी रहे हो, नेस्ले की कॉफी पी रहे हो, तो यू बाय दोज कंपनीज, दो शेयर विच यू आर कंज्यूमिंग ऑन डे टू डे लाइफ, एंड यू फील कि आपके सर्कल में भी लोग वही चीज कर रहे हैं। दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड इफेक्टिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट। दूसरा तरीका, अगर आपको लगता है कि ठीक है डायरेक्ट स्टॉक में फिर भी थोड़े से चैलेंजेस होते हैं, हमें नहीं लगता कि हम कर पाएंगे, तो मुझे लगता है सेकेंड वे इज मच मोर इफेक्टिव वे, एंड विच इज इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स। आप स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करोगे, तो बहुत ही अच्छा तरीका है वेल्थ क्रिएट करने का। मैं पहले जानना चाहता हूँ आप में से कितने लोग ऑलरेडी कोई ना कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट या तो कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं थ्रू एसआईपी। तो प्लीज टाइप एमएफ म्यूचुअल फंड अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं इन म्यूचुअल फंड्स। प्लीज टाइप एमएफ। एमएफ, एमएफ, एसआईपी, एनपीओ। वीना जी, एनपीओ का मतलब क्या, मैं समझ नहीं पाया। आर यू सेइंग नो, और मतलब मुझे नहीं समझ पाया कि आप क्या कह रहे हो। एनपीओ, I have invested in stocks. Oh, wonderful, wonderful. MF, SIP, wonderful. Chalo, I think most of the participants are already doing it. We will take. अच्छा, it was no. Okay, okay, it's okay. ठीक है, नो इश्यूज। तो आज हम थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझेंगे। जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, आई थिंक कुछ कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा, शायद आपको भी हेल्प करेगा म्यूचुअल फंड्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। हम कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। और बिकॉज जो लोग ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, मैं उनको लास्ट में एक चीज और भी शेयर करूंगा, विच दे कैन स्टार्ट डूइंग इट एंड कैन मेक मच मोर रिटर्न, तो उसके बारे में बात करेंगे। आई हैव नेवर इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स म्यूचुअल फंड एक्सेप्ट एनपीएस। ओके, नो इश्यूज। तो आज का जो सेशन है उसका पर्पस ही है कि हम एक और एसेट क्लास को थोड़ा समझ पाए। सी करना नहीं करना इट्स योर फाइनल डिसीजन, बट समझ लेते हैं क्यों करना चाहिए, क्या उसके फायदे हैं, क्या रिस्क है, तो विल कवर एवरीथिंग। म्यूचुअल फंड अब होता क्या है, बहुत सिंपल। अगर मैं लैंग्वेज में समझाऊं, सो म्यूचुअल फंड इज नथिंग, इट्स ए ट्रस्ट। एक ट्रस्ट बनाते हैं जहां पे लोगों से पैसा पूल किया जाता है। वो पूल करके पैसा उस कंपनी में जाता है, और वो कंपनी, वो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, उस पैसे को इन्वेस्ट करती है जो भी उसका ऑब्जेक्टिव होता है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे काफी लोग पैसा इकट्ठा करते हैं,
वो देते हैं। उस कंपनी में एक फंड मैनेजर होता है, उनकी एक टीम होती है। वो फंड मैनेजर उस पैसे को मैनेज करता है, डिसाइड करता है कि उस पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। अब अगर हम एक चार्ट की बात करें तो सिंपल चार्ट के तरीके में समझ सकते हैं कि एक इन्वेस्टर है, वो पैसा पूलिंग कर रहे हैं। वो पैसा पूलिंग करके वो पैसा पूलिंग कर रहे हैं, फंड मैनेजर को देते हैं। फंड मैनेजर उस पैसे को इन्वेस्ट करता है, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है। वहां से रिटर्न जनरेट होते हैं, वो रिटर्न वापस चले जाते हैं इन्वेस्टर्स को। सो ये एक सिंपल मैकेनिज्म है म्यूचुअल फंड में काम करने का। क्या हर कोई भी कंपनी म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। सेबी की रेगुलेशंस है, उनकी उनकी बहुत सारी कंप्लाइंसेस होती है कि कौन म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकता है। मिनिमम उनको 100 करोड़ का उनका नेटवर्थ होना चाहिए, उनकी पूरी कंडीशंस है। म्यूचुअल फंड में जो पैसा आता है वो अलग से एक ट्रस्ट बनता है, वहां पे आएगा, उसकी सिक्योरिटीज अलग जगह रखी जाएगी। तो प्रॉपर एक मैकेनिज्म होता है जिसको सेबी, जो मार्केट की गवर्निंग बॉडी है, उसको ओवरलुक करती है। तो दिस इज अ म्यूचुअल फंड, हाउ इट वर्क्स। अब म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट करता है? अच्छा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकता है गोल्ड में, इट कैन इन्वेस्ट इनटू मनी मार्केट या बॉन्ड मार्केट, इट कैन इन्वेस्ट इनटू शॉर्ट टर्म मार्केट विच इज मनी मार्केट, इट कैन इन्वेस्ट इनटू स्टॉक, इट कैन इन्वेस्ट इनटू रियल एस्टेट। तो जो भी म्यूचुअल फंड की स्कीम है, हर एक स्कीम का एक ऑब्जेक्टिव होता है, पहले से पता होता है। जो भी उस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा डालना है, अगर आपको मार्केट की रिस्क नहीं लेनी, तो मनी मार्केट या बॉन्ड मार्केट में भी आप पैसा डाल सकते हैं। अगर आपको गोल्ड खरीदना है और फिजिकल वे में गोल्ड नहीं खरीदना, तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू भी खरीद सकते हैं, जहां पे गोल्ड के हिसाब से प्राइसेस अप या डाउन होते हैं। और ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट तो है ही जहां पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सारे माध्यम है, और इनके कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सम अमाउंट इन इक्विटी, सम इन गोल्ड, सम इन मनी मार्केट, ऐसी भी स्कीम्स आती हैं। बहुत तरीके की स्कीम्स होती हैं, उस पर थोड़ा सा आज बात नहीं करेंगे। आज विल टॉक जस्ट ऑन द ब्रॉडर साइड। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है। उसमें भी अगर आप डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करेंगे तो और ज्यादा बेटर है। अब डिसिप्लिन मतलब सिस्टमैटिक वे, यानी कि एसआईपी रूट के थ्रू। जैसे कि मैंने देखा कि काफी पार्टिसिपेंट्स ने ऑलरेडी डाला था कि उन्होंने ऑलरेडी एसआईपी भी कर रखी है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अब एसआईपी होता क्या है समझ लेते हैं, फॉर पीपल दोस हु डजंट हैव नॉलेज ऑन एसआईपी, या जिन्होंने नहीं कर रखा। एसआईपी मीन्स एक सिस्टमैटिक अमाउंट जो आप पीरियोडिकली इन्वेस्ट करते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट में। अब फिक्स अमाउंट कैन बी 1000, 2000, 5000, जो भी आप चाहें। पीरियोडिक ड्यूरेशन कैन बी, इट कुड बी डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, आप डिसाइड कर सकते हैं। जो सबसे फेमस या कॉमन है वो मंथली है। कहाँ इन्वेस्ट करना है? जो भी आप स्कीम में चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी फंड में, डेट फंड में, गोल्ड फंड में। क्या एसआईपी सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए यूज होता है? नहीं। एसआईपी एक कॉन्सेप्ट, एक टर्म है। कोई भी इन्वेस्टमेंट को अगर आप सिस्टमैटिक कर रहे हो तो उसको एसआईपी कह सकते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक में आपने आरडी ओपन करी है, तो आपने 10,000 रुपीज पर मंथ की आरडी ओपन करी है, तो वो भी एक एसआईपी है कि हर महीने आपके 10,000 रुपीज इन्वेस्ट हो रहे हैं। या फिर आप हर महीने गोल्ड खरीदते हो 10,000 रुपीज का, ये भी एसआईपी है, आपने हर महीने फिजिकली गोल्ड खरीदा 10,000 रुपीज का। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट को अगर आप सिस्टमेटिकली करते हो उसको एसआईपी बोलते हैं। बिकॉज ये वर्ड जो एसआईपी, आई विल रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स की प्लीज आप लोग एक बार म्यूट कर लीजिए। थोड़ा सा डिस्टरबेंस आता है बीच में, तो रिदम हो जाता है। थैंक यू, थैंक यू। सो एसआईपी का जो कॉन्सेप्ट है, ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने लाया था, इसलिए वो यूज करते हैं। बट एनी इन्वेस्टमेंट विच यू डू सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड एसआईपी। अब एसआईपी के फायदे क्या है? तो सबसे पहले इट ब्रिंग्स फाइनेंशियल डिसिप्लिन। मेरा ये मानना है, एंड आई ट्रूली बिलीव इन दिस, कि कोई भी काम को अगर आप डिसिप्लिन वे से करते हो तो आपको सक्सेस अचीव होती है। तो इन्वेस्टमेंट, As a host, people, can't you mute people? मैं लेट मी सी, लेट मी सी। कोई उसको करता है, इसमें ये कर दिया, फलाने कर दिया। क्या? अरे वो तो कल करना पड़ेगा, इनके साथ में होता है, तो करता है, सारी चीजें खुद ही करता अरे नहीं करता रहे। करवाता है। ओके, so I am now muted. So I am sorry, it was causing some disturbance. Yeah, I am just muting it. Yeah. Okay. So किसी भी काम को अगर आप डिसिप्लिन वे में करते हो, रेगुलर वे में करते हो,
ट्रस्ट मी यू विल गेट रिजल्ट। तो SIP वो एक डिसिप्लिन ही है, वो एक रूटीन सेट करता है कि यस आप हर हफ्ते या हर महीने आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। काफी लोग समझ नहीं पाते कि SIP करने का फायदा क्या है। उसका फायदा है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। बिकॉज स्टॉक मार्केट एक साइकिल में काम करता है, हमने पहले भी बताया था, कभी मार्केट ऊपर भी होता है कभी नीचे भी होता है। तो बिकॉज आपका एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट होता है, तो जब मार्केट गिरता है तो उस अमाउंट के अगेंस्ट आपको ज्यादा यूनिट्स आ जाते हैं। जब अमाउंट थोड़ा ऊपर होता है, जब मार्केट थोड़ा ऊपर होता है, तो उस अमाउंट के अगेंस्ट आपको कम यूनिट आते हैं, तो आपका एवरेज आउट हो जाता है। तो मार्केट कभी ऊपर है तो आपने इन्वेस्ट किया, मार्केट नेक्स्ट महीने नीचे आया तो इन्वेस्ट किया, तो एवरेज आउट हो गया, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर SIP, व्हाई इट इज सो सक्सेसफुल। मार्केट टाइमिंग रिस्क, अब कई लोगों को लगता है कि इलेक्शन है तो मार्केट में इन्वेस्ट करें, इलेक्शन के बाद करें, अभी ये आ रहा है, अभी कोई इवेंट आ रहा है। सो SIP आप करते हो तो ये सारे इवेंट्स को आपको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, आज के सेशन का अगर आपको मतलब दिस इज माय बिलीव, अगर आपको पूरे सेशन में कुछ की टेक अवे लेके जाना है ना, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप अगर समझ जाओगे ना, ट्रस्ट मी, लाइफ का व्यू इन्वेस्टमेंट्स को लेकर और अदर चीजों को लेकर चेंज हो जाएगा। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है वो हम अच्छे से बात करेंगे। कैन स्टार्ट विद ए स्मॉल अमाउंट। SIP की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप छोटे से अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट की जरूरत नहीं है, आप 500,000 रुपए महीने से भी SIP स्टार्ट कर सकते हो। हेल्प्स टू अचीव फाइनेंशियल गोल, आपकी लाइफ के हर एक गोल अचीव कर सकते हो अलग अलग SIP अलग अलग गोल को मैनेज करके। कुछ एक एग्जाम्पल हम लास्ट में कवर करेंगे कि SIP से आप कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। अब आई नो मैं वॉरेन बफेट के बारे में कई बार बात करूं, आई एम रियली सॉरी, बट ही इज लाइक ए रोल मॉडल फॉर मेनी पीपल हु आर इनटू इन्वेस्टिंग। अब मैं आपको ना एक चीज बताना चाहता हूँ। वॉरेन बफे ने एक मीडिया पर्सन ने पूछा था कि सर आपका इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में या जो आप इन्वेस्टिंग करते हो आपका बिगेस्ट रिग्रेट क्या है। तो उनका आंसर ये था कि मेरा बिगेस्ट रिग्रेट इन इन्वेस्टमेंट इज दैट आई स्टार्टेड लेट, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 11। कि मैंने 11 साल में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी, मैंने बहुत देर कर दी, काश ये इन्वेस्टिंग मैं जल्दी स्टार्ट कर पाता। अब मैं आपको एक नंबर दिखा रहा हूँ, ये वॉरेन बफे का नेटवर्थ है और ये एज है। जब वो 15 साल के थे तब उनके पास सिर्फ $6,000 थे। ऑब्वियसली वो पार्ट टाइम काम करते थे और पैसा इन्वेस्ट करना उन्होंने 11 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिया था। अब कंपाउंडिंग क्या होती है आपको यहां से भी समझाऊंगा और नेक्स्ट एग्जांपल भी लेंगे, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेल्थ क्रिएशन में। अब आप देखोगे उनका जो $1 बिलियन उन्होंने कमाया था, $1 बिलियन, वो था एट द एज ऑफ 55 एंड 56। सो लेट मी मार्क इट। सो उनकी नेटवर्क का $1 बिलियन उन्होंने कमाया था एट द एज ऑफ 56, एंड व्हेन ही स्टार्टेड एट द एज ऑफ 11। बट $1 बिलियन से नेक्स्ट $1 बिलियन उन्होंने कमाया अगले 2 साल में। When he was 72 उनकी नेटवर्थ थी $36 बिलियन। When he was 83 उनकी नेटवर्थ थी $58 बिलियन, और उसके अगले 5 साल में his net worth was $85 बिलियन। आज की तारीख में अगर बात करूं, he is now 92 years of age, उनकी नेटवर्थ है $110 बिलियन। तो अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, $1 बिलियन से $110 बिलियन ऑलमोस्ट इन स्पैन ऑफ 40 ईयर्स। जबकि फर्स्ट 40 ईयर्स में उनके $1 बिलियन भी अचीव नहीं हुए थे। तो कंपाउंडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये कि आपको टाइम देना पड़ेगा। आप जब लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हो उसके जो रिजल्ट है वो आपको आफ्टर 15 20 25 ईयर्स दिखना स्टार्ट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मैं आपको ना एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से भी समझाना चाहता हूँ। आप में से काफी लोग ने मुझे बताया कि आप लोग SIP स्टार्ट करो। आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसी चीज को मैं बता रहा हूँ बट इन ए वेरी सिंपल वे। अगर आप 25,000 रुपीज पर मंथ की SIP करते हैं, मैं एक सिंपल सा नंबर ले रहा हूँ कि अगर आप 25,000 पर मंथ की SIP करते हैं, अज्यूमिंग उस SIP में आपको रिटर्न 15% से आ रहे हैं। 15% नंबर कहाँ से आया, हमने देखा सेंसेक्स का रिटर्न ही 16% के आसपास है, तो हमने राउंड फिगर 15% लिया। तो 13th ईयर पे जाके आपके फर्स्ट करोड़ रुपीज आप जोड़ पाओगे। ठीक है, फर्स्ट करोड़ रुपीज आप जोड़ पाओगे 13th ईयर पे। अब आपकी SIP चल रही है, कंटिन्यू है 25,000 पर मंथ। 17th ईयर पे जाके आपके पास अनदर 2 करोड़ रुपीज इकट्ठे होंगे। तो पहले फर्स्ट करोड़ को वो आपको लगे 13 ईयर्स, सेकेंड करोड़ पे लगे 4 ईयर्स। आपकी SIP चल रही है,
20th ईयर में यू विल मेक 3.31 करोड़, थर्ड करोड़ में आपको लगे 3 इयर्स, अगेन 22 ईयर्स में 4 करोड़ एंड 23 ईयर्स में 5 करोड़, लास्ट फोर्थ करोड़ 2 इयर्स एंड फिफ्थ करोड़ इन 1 करोड़ 1 ईयर। सो आप देख रहे हो कैसे टाइम डिक्रीज हो रहा है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है, आपने 23 सालों तक 25,000 रुपए महीना ही इन्वेस्ट किए, ना 1 रुपए ज्यादा ना 1 रुपए कम। विद द अजम्पशन ऑफ 15% रिटर्न आपकी वेल्थ क्रिएट 5 करोड़ है, बट आउट ऑफ दिस 5 करोड़ फर्स्ट करोड़ को 13 साल लग गए। उसके बाद कंपाउंडिंग का बेनिफिट स्टार्ट हुआ 15-20 ईयर के बाद से, एंड देन यू कैन सी कि कैसे स्पीड इतनी फास्ट हो गई कि लास्ट 1 करोड़ 1 साल के अंदर हो गया, लास्ट 1 करोड़। सो दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि आपको टाइम देना पड़ेगा और उसके बाद आपकी वेल्थ बहुत ही ज्यादा अनप्रोपोर्शनेटली क्रिएट होगी। तो एज ए इन्वेस्टर ना, हम लोग कहीं ना कहीं रिटर्न पे फोकस बहुत करते हैं कि हमारे रिटर्न्स कितने आ रहे हैं, हम टाइम को इग्नोर कर देते हैं। बट वेल्थ क्रिएशन में मुझे लगता है तीनों चीज का कॉम्बिनेशन है। आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, पहला, आप कौन से एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां से रिटर्न क्या आ रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, और तीसरा आप कितने टाइम के लिए कर रहे हो। इन तीनों चीजों में आप एक भी चीज को हटा दोगे या कम कर दोगे तो आपकी वेल्थ क्रिएट बहुत ज्यादा नहीं होगी। अगर आपका रिटर्न कम है तो आपकी वेल्थ क्रिएट ज्यादा नहीं होगी, अगर आपने इन्वेस्टमेंट ही छोटा अमाउंट किया है तो आपकी वेल्थ क्रिएट ज्यादा नहीं होगी, या आपने कम समय के लिए किया तो भी आपकी वेल्थ क्रिएट ज्यादा नहीं होगी। सो तीनों कॉम्बिनेशन के बेसिस पर ही आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। अब क्वेश्चन आता है कि इक्विटी मार्केट में अगर वेल्थ क्रिएट हो रही है और इतने अच्छे से हो रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पा रहे। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इक्विटी मार्केट ना एग्जैक्टली रोलर कोस्टर की तरह है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो सबको बड़ा मजा आता है, बट वही मार्केट जब नीचे आता है, जैसे कि रोलर कोस्टर में हम नीचे आते हैं स्पीड से, तो सबको डर लगता है। सेम थिंग्स हैपनिंग विद स्टॉक मार्केट। जब मार्केट अप जाता है तो हम सबको बड़ा मजा आता है कि अरे यार हमारी वेल्थ ग्रो हो रही है, बट सेम मार्केट जब नीचे आता है तो हम सब डर जाते हैं। अब आप सब में से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पता है कौन से शहर में वर्ल्ड का फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है? सो कौन से शहर में वर्ल्ड का फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है? प्लीज टाइप योर आंसर इन चैट बॉक्स। You can name the city or country, it's okay. हिंट तो वैसे दे रखा है मैंने फोटो में। जापान, ओके, चाइना, ओके, मलेशिया, ओके, अच्छा, नो इश्यूज, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। सो अबू धाबी फरारी वर्ल्ड। सो अबू धाबी में फरारी वर्ल्ड में वर्ल्ड का फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है, विच गोज विद स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर। अब आप ऐसे समझो कि आप उस रोलर कोस्टर में बैठे हो, ऐसा अज्यूम करते हैं। देखो डर सबको लगता है, मतलब रोलर कोस्टर इतना फास्ट होगा तो डेफिनेटली सबको डर लगेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि किसी को डर, मजा तो आता ही है पर डर भी लगता है। पर मेरा क्वेश्चन आप लोगों से कि सपोज आप उस रोलर कोस्टर में बैठे हो और वो रोलर कोस्टर चल रहा है, बहुत स्पीड से चल रहा है, 240 किलोमीटर पर आवर इज वेरी फास्ट। क्या आप डर में, उस डर में आपको डर लग रहा है, उस डर को खत्म करने के लिए क्या आप रोलर कोस्टर का खत्म होने का इंतजार करोगे, या फिर आप सीट बेल्ट हटा के कूद जाओगे क्योंकि आपको डर बहुत लग रहा है? सो टाइप सीटेड और टाइप जंप, कि उस डर को मिटाने के लिए आप क्या करोगे? आप सीटेड रहोगे, इंतजार करोगे कि रोलर कोस्टर खत्म हो जाएगा, या फिर आप कूद जाओगे कि नहीं भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा, आई वांट टू जस्ट एग्जिट। वैसे फास्टेस्ट रोलर कोस्टर का फायदा भी ये है कि वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है क्योंकि इट इज सो फास्ट, आपको शायद मौका भी नहीं लगे। सीटेड इज द ओनली ऑप्शन, यस, राइटली सेड, सीटेड इज द ओनली ऑप्शन, क्योंकि जंप आउट करे तो पक्का मतलब नीचे से ऊपर ही होगा, कोई और ऑप्शन बचेगा नहीं। इन द सेम वे स्टॉक मार्केट में भी ना आपको ऐसे मौके आएंगे जब मार्केट नीचे आएगा, देयर विल बी फियर, हर जगह नेगेटिव न्यूज होगी, न्यूज़पेपर में, मीडिया में, फ्रेंड्स में लोग बात करेंगे, अरे यार मार्केट में इतना करेक्शन हो गया, अरे ऐसा हो गया, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होगी। आप नोट करना, इस तरह की हेडलाइंस होती है। ब्लड बाथ इन स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टर लूज 10 लाख करोड़ रुपीज इन शेयर मार्केट, मतलब आपको इस तरह की हेडलाइंस मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं वो डर आपको दिखेगा। कोविड के टाइम पे भी बहुत हुआ था, वॉर के टाइम कुछ होता तो होता है। तो मैं आपको ये कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि लास्ट 20-24 ईयर्स में बहुत सारे कारण ऐसे थे जब मार्केट 10-20-30% गिरा था। इट कुड बी फाइनेंशियल क्राइसिस, .com केतन पारिक स्कैम था, ईरान इराक का वॉर था,
इलेक्शन में वाजपेयी जी हार गए थे मतलब अनएक्सपेक्टेडली, यूपीए गवर्नमेंट आई तो मार्केट गिरा था, कोविड, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, देयर हैज बीन लॉट मोर रीजंस, देयर इज लॉट मोर रीजन। और हर 2-3-4 साल में ऐसे ऐसे मौके आते रहते हैं, हर 1-2-3 ईयर्स में आप ऐसे किस्से सुनते रहोगे। बट थिंग्स यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि मार्केट कब करेक्ट होगा, मार्केट कितना करेक्ट होगा, और मार्केट कितना टाइम लेगा रिकवर होने में। किसी के पास उसका आंसर नहीं है, इवन आई डोंट हैव द आंसर। बट ये बात पक्की है कि करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। कि जो चीज मार्केट है नीचे जाएगी, वो फिर वापस ऊपर तो आएगी। तो और ऐसे हमने पास्ट के बहुत सारे इवेंट्स देखे हैं जहां पे मार्केट करेक्शन हुई, बहुत गिरी, बट इवेंचुअली ऊपर आ गई। अब लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ, 4 जून को मार्केट सेंसेक्स की अगर बात करूं तो सिंगल डे 4,500 पॉइंट्स गिरा था। सिंगल डे बता रहा हूँ, 4,500 पॉइंट, विच इज अ बिग नंबर। बट जैसी वो सीट्स वाला सेटल डाउन हो चुका, नेक्स्ट 2 डेज में वो वापस उसके ऊपर आ गया। सो मतलब ये तो बहुत फास्ट रिकवरी थी, ऐसा हर बार नहीं होता। अगर कई बार रिकवरी में प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, तो 2-4-6 महीने लग सकता है, 1 ईयर लग सकता है, बट वो रिकवर कर जाता है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें करेक्शन से घबराना नहीं है। करेक्शन इज लाइक एन अपॉर्चुनिटी। जब आप लोग, मैं एक सिंपल से क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, जब आप लोग मॉल में जाते हो और वहां पे आप लोग को कोई चीज में सेल दिखती है, आपको लगता है इस ब्रांड में सेल है, इस कपड़ों की शॉप में सेल है, या शूज शॉप में सेल है, तो आप ज्यादा अमाउंट की शॉपिंग करते हो कि कम अमाउंट की शॉपिंग करते हो? प्लीज टाइप मोर और लेस। अगर आपको मार्केट में सेल दिखती है, आपको लगता है बहुत अच्छी सेल है, तो आप ज्यादा अमाउंट की शॉपिंग करते हो या कम अमाउंट की शॉपिंग करते हो? मोर, मोर। एंड दैट इज द राइट आंसर विद एवरीवन, इवन आई डू दैट। बट जब स्टॉक मार्केट में सेल लगती है, यानी कि जो शेयर प्राइस 1 महीने पहले ज्यादा का था, आज वो कम हो गया, समहाउ पीपल डू अदर वे राउंड, और वो उल्टा अपने शेयर्स को सेल कर देते हैं लॉस में। तो ये क्यों करते हैं? इट्स बिकॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, बिकॉज उनका इन्वायरमेंट ऐसा होता है, सब जगह से नेगेटिव न्यूज आती है, उनको डर लगता है कि और लॉस ना हो जाए, इसलिए वो सेल कर देते हैं। सो डोंट डू दिस। ये ग्रीड और फियर की एक साइकिल है जो हमेशा चलती है मार्केट में। कभी ग्रीड होगा, कभी फियर होगा। ग्रीड मतलब जब मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है, एवरीबडी थिंक कि मार्केट और ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, फिर मार्केट करेक्ट कर जाता है। या फिर फियर, जब लोगों को लगता है कि नहीं यहाँ से तो मार्केट और गिरेगा, अरे ये तो प्रॉब्लम हो गया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट देन इवेंचुअली मार्केट रिकवर्स। तो आपको इस साइकिल का ध्यान रखना है, एंड मेक श्योर कि जब मार्केट में सेल लगे तो आप बायर बनो, सेलर नहीं। बस ये अगर आप कर लोगे, ट्रस्ट मी, यू विल मेक गुड मनी इन स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स। अब मैं आप लोगों से एक पावरफुल सिप आइडिया शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज आप लोग काफी लोग सिप कर रहे हो, बट उसको एक गोल के साथ मैप करता हूँ और आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कैसे इस सिप को आप अपने सारे गोल्स को अचीव कर सकते हो। ठीक है? तो सिप आइडिया क्या है? सपोज फॉर योर किड्स फ्यूचर, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। सपोज यू हैव ए डॉटर, सपोज उनका नाम है वान्या, एज है 2 ईयर्स। अब द मोमेंट वी हैव किड, मेरा ये मानना है आपकी लाइफ के 2 गोल्स तो पक्के हैं। पहला, बच्चों की हायर एजुकेशन, सेकंड, बच्चों की मैरिज। ये पक्का, ये गोल, 2 गोल होने ही होने। सपोज हमने एग्जांपल लिया कि हायर एजुकेशन, यानी कि आफ्टर 12 पैसों की जरूरत पड़ेगी हायर एजुकेशन के लिए, और मैरिज की जो एज है वो 25 ईयर्स के आसपास होगी, एक हमने एजम्पशन लिया। अगर हम देखें कि आज की तारीख में, मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि गोल बेस्ड प्लानिंग करते कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ। तो अब मैंने बोला कि आज की तारीख में अगर आपकी डॉटर कोई कोर्स करती है, तो सपोज 20 लाख रुपीज लगते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 ईयर्स। कि भाई आपने इंजीनियरिंग करी या मेडिकल करा, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन या कुछ और किया, एमटेक किया या समथिंग एल्स किया, तो 3 से 4 साल के पीरियड में, 5 साल के पीरियड में ऑन एन एवरेज 20 से 25 लाख बड़े आराम से लग जाते हैं। तो हमने 20 लाख का नंबर पकड़ा। और मैरिज के लिए अगेन इट्स ए सब्जेक्टिव नंबर, मतलब इट ऑल डिपेंड्स, हम मतलब कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं, तो कहीं पर ये नंबर बहुत कम है, कहीं पे डिसेंट है, कहीं पे बहुत ज्यादा है, इट ऑल डिपेंड्स। तो मैंने एक नंबर लिया कि 15 लाख रुपीज मैरिज में लगते हैं। अगर आज हम मैरिज करते हैं, अगर हमारी फैमिली में आज मैरिज होती है, तो 15 से 20 लाख रुपए लग जाते हैं। अब हम ना इसकी एक फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि ये आज की कॉस्ट है। तो 17 साल बाद वो 20 लाख रुपीज की कॉस्ट क्या होगी? तो हमने अजूम किया इन्फ्लेशन को 5%। हमने बात करी थी कि इंडिया का लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन 6 से 7% है, तो हमने 5% एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन अजूम किया। तो जो आज 20 लाख रुपीज है, 17 साल बाद वो एजुकेशन कॉस्ट 45 लैक्स के आसपास हो जाएगी। वो जो वैल्यू है एजुकेशन की, वो बढ़ के 45 लैक्स हो जाएगी।
और वही चीज मैरिज की 25 ईयर्स के बाद, आज जो 15 लाख रुपए की वैल्यू है, 25 ईयर्स के बाद वो वैल्यू 50 लाख रुपीज के आसपास हो जाएगी। यानी कि जब 25 ईयर्स होंगे तो उस टाइम पे 50 लाख रुपए चाहिए होंगे टू डू सेम अमाउंट ऑफ मैरिज या सेम लेवल ऑफ मैरिज जो 15 लाख में आज आप कर सकते हो। अब इसको अचीव करने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, आपको लॉन्ग टर्म की सिप करनी है। कितनी सिप करनी है? बिकॉज आप जल्दी स्टार्ट करोगे, अज्यूमिंग 15% का रिटर्न हम हमारी सिप में आ रहा है, तो आपको एजुकेशन के लिए सिर्फ 5400 रुपीज की सिप स्टार्ट करनी है फॉर नेक्स्ट 17 ईयर्स। और फॉर मैरिज आपको 1843 की सिप स्टार्ट करनी है फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। ये दोनों अमाउंट को आप अगर करोगे इन्वेस्ट, तो आपके बच्चे के दोनों गोल्स, एक तो 17 ईयर में और एक 25 ईयर में पूरी हो जाएगी। अब ये क्यों इतने छोटे अमाउंट से हो रहा है? बिकॉज हमने जल्दी स्टार्ट कर दिया, हमने कंपाउंडिंग का फायदा उठा लिया। तो इसलिए लाइफ में हर एक गोल के लिए आपको यही करना है, आपको करंट कॉस्ट देखनी है, फिर आपको इन्फ्लेशन से उस कॉस्ट को आगे लेके जाना है, एंड देन फिर देखना है कि अगर हम उससे सिप करें तो हमें पर मंथ कितने इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। जितना जल्दी आप ये स्टार्ट करोगे अपनी इन्वेस्टिंग, उतनी जल्दी आप अपने सारे लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर लोगे। एंड एज प्रॉमिस्ड, मैंने आप लोगों को बताया था एक पावरफुल सिप आइडिया और शेयर करूंगा, जो लोग एसआईपी कर रहे हैं। तो आप में से कितने लोग एसआईपी टॉपअप के बारे में जानते हैं? एसआईपी टॉपअप या स्टेप अप एसआईपी, स्टेप अप भी बोल सकते हैं। सो प्लीज टाइप यस। अगर आप लोग जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसआईपी करें, मैं उनकी बात करूं, उनके साथ मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा। तो प्लीज टाइप स्टेप अप या टॉप अप अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो या जानते हो उसके बारे में। हेलो, एक मिनट, जस्ट लेट मी म्यूट। सॉरी फॉर द नॉइस। So please type टॉप अप या स्टेप अप अगर आप ऑलरेडी ये वर्ड्स को जानते हो, जो एसआईपी कर रहे हैं, जो एसआईपी कर रहे हैं। अगर आप नहीं जानते तो प्लीज टाइप नो, प्लीज टाइप नो, नो। ओके, तो मैंने आपको बताया था ना, एक पावरफुल चीज मैं शेयर करूंगा उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी एसआईपी कर रहे हैं। सो स्टेप अप और टॉप अप एसआईपी का मतलब सिंपल होता है कि जो आप एसआईपी कर रहे हो, आप हर साल 1% से अपनी एसआईपी को बढ़ा दो। फॉर एग्जाम्पल, आप 10,000 पर मंथ से एसआईपी कर रहे हो, ठीक है? अब आप क्या करो, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेप अप एसआईपी या टॉप अप एसआईपी। हर साल सपोज 10% से आप अपनी एसआईपी को बढ़ाओ, यानी कि नेक्स्ट ईयर आप 11,000 से हर महीने एसआईपी करो, उसके नेक्स्ट ईयर 1100 से एसआईपी बढ़ाओ। अगर आप ये काम करते हो तो आपकी जो एंड की वेल्थ है, मतलब सपोज आपने 20 ईयर्स के लिए एसआईपी करी है, ट्रस्ट मी, जस्ट इंक्रीजिंग 10% ऑफ अमाउंट एवरी ईयर, आपका जो फाइनल गोल था ना, उसमें उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी, डबल का फर्क आ जाएगा। अब 10% इंक्रीमेंट को ज्यादा नहीं है, मतलब देखिए हर साल हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़ना चाहिए ना। फिक्स नहीं होना चाहिए कि चलो आज हमने 10,000 स्टार्ट किया तो हम उसको 10,000 ही रखेंगे। वाई? लेट अस इंक्रीज इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो, जस्ट लाइक आवर एक्सपेंसेस गेट इंक्रीज, जस्ट लाइक आवर इनकम गेट इंक्रीज। तो अगर आप ये कर दोगे तो आपके जो भी गोल है ना, या तो वो फास्टर अचीव हो जाएंगे या फिर उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। सो एक सिंपल यूज करने से, टॉप अप या स्टेप अप एसआईपी करने से आप बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, मतलब ऑलमोस्ट डबल का फर्क पड़ेगा। सो दिस वाज वन थिंग विच आई वांट टू शेयर विद यू। अब इक्विटी का टैक्सेशन के बारे में बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टॉक मार्केट में या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, मैं यहाँ पे इक्विटी की बात करूँ स्पेसिफिकली, जो टैक्सेशन होता है वो कैपिटल गेन के अंदर आता है। कैपिटल गेन मतलब या तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो जब हम इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं, तो जो भी गेन आपको इक्विटी सेल करते समय या इक्विटी म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, तो वो कैपिटल गेन के अंदर आता है। अब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? अगर आपने कोई भी शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड 12 मंथ से पहले सेल करते हैं, तो वो कहलाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और उस पर 15% का टैक्स लगता है, फ्लैट है 15%। और अगर आप कोई भी शेयर या कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड 1 साल के बाद सेल करते हैं, तो वो कहलाते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और वहां पे 1 लाख तक जो गेन है वो एग्जाम्प्ट होता है, 1 लाख तक का जो प्रॉफिट है उस पर कोई टैक्स नहीं है, एंड उसके बियॉन्ड 10% है, उसके बियॉन्ड 10% है। अब देखिए यहाँ पे ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एफडी या इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स में कर रहे हो, बॉन्ड्स में कर रहे हो या कहीं और कर रहे हो, आप डेट म्यूचुअल फंड्स में भी कर रहे हो, तो वहां पे टैक्सेशन एज पर टैक्स स्लैब है।
अगर आपका टैक्स स्लैब 30% है तो जो भी आप इनकम कमा रहे हो 30% टैक्स हो रही है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आप इनकम कमा रहे हो आपका नॉर्मल टैक्स ब्रैकेट 30% है, विच इज ओके। बट इस पे जो प्रॉफिट हुआ 1 लाख तक का, तो पर ईयर आपको कोई टैक्स देना नहीं है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करो, और उसके बियॉन्ड 10%। हाँ, अगर आपने 1 साल से पहले कुछ भी बेचा है तो आपको 15% टैक्स देना है, विच इज स्टिल लोअर देन द 30%। तो यहाँ पे आपको रिटर्न्स भी अच्छे आ रहे हो, यहाँ पे आपको टैक्स भी कम है। तो हमने पहले भी बात करी थी कि इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे हो तो इन्फ्लेशन और टैक्सेशन दोनों को ध्यान देना जरूरी है। इट इज जस्ट लाइक कि आपका जो मतलब एक एग्जांपल दे सकते हैं कि एक बकेट है और आपने एक टैप को ओपन किया है पानी भरने के लिए। अब उस बकेट पे 2 छेद है इन्फ्लेशन और टैक्स के। अगर उन जो छेद है उसका साइज, जो पानी आउटफ्लो जा रहा है, इट इज मोर देन द जो टैप से पानी इनफ्लो आ रहा है, तो बकेट कभी फुल नहीं होगी। वो बकेट पानी आता रहेगा ऊपर से और नीचे से निकलता रहेगा। सो कहीं ना कहीं जो फ्लो ऑफ वाटर है जो बकेट में आ रहा है, इट हैज टू बी मोर एंड द आउटफ्लो स्पीड हैज टू बी लेस, देन ओनली बकेट विल फिल। तो इन्फ्लेशन और टैक्सेशन इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। पर व्हाट वी कैन डू इज दैट कि हम जो हमारे इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो इनफ्लो है, जो स्पीड ऑफ रिटर्न है, अगर वो हम ज्यादा कर दें, यानी कि जो इन्फ्लेशन और टैक्स को बीट कर दें, देन आर वेल्थ गेट्स क्रिएटेड। सो दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ। अब मैं आप सबसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगेन इट्स ए ओपन एंडेड क्वेश्चन, कोई सही या गलत जवाब नहीं है। आपका फेवरेट फूड क्या है? आप लोग सब लोग प्लीज चेक बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, व्हाट इज योर फेवरेट फूड? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स जो भी आप लोग का है, मतलब अगेन नो राइट और रॉन्ग आंसर, जो आप लोग का फेवरेट फूड है। चाइनीज, ओके, वंडरफुल। होम कुक्ड, वंडरफुल। ममता मैम ने बताया मेरे को, मनीषा मैम ने चाइनीज। अरे अब तो फूड के बारे में पूछ रहा हूँ, अब तो रिस्पॉन्स आनी चाहिए, मतलब अब तो कोई फाइनेंशियल क्वेश्चन नहीं है। होम मेड फूड, वंडरफुल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि सबकी अपनी में चॉइस है। वैसे मैंने होम कुक नहीं, मैंने विच फूड पूछा था, तो इट कुड बी लाइक इडली डोसा पाव भाजी चाइनीज, मतलब आइडियली आई जस्ट वांटेड टू हैव द डिशेस नेम साउथ इंडियन फ्राइड इडली, ओके। सो हम देख सकते हैं कि सबके अलग अलग पिज्जा, ओके वंडरफुल। सो अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा, इसका रेलेवेंस क्या है यहाँ पे? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सबकी फूड चॉइस डिफरेंट है, इसी तरीके से बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि पर्सनल फाइनेंस इज मोर पर्सनल, मतलब इसका कोई एक आंसर हो ही नहीं सकता। इट ऑल डिपेंड्स व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, आप क्या चाहते हो, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमें चूज करना चाहिए। हमारा फ्रेंड क्या कर रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स क्या कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर। एवरीथिंग हैज टू बी डिपेंडिंग ऑन आर रिक्वायरमेंट, आर चॉइस। जैसे खाने के बारे में बात करूं, हम खाना ऐसे सिलेक्ट नहीं करते कि यार मेरे फ्रेंड क्या क्या बनना है, चलो मैं भी वो बनवा लेता हूँ। हमें जो मन करता है वो चीज खाते हैं। सेम वे इन्वेस्टमेंट में और फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी पर्सनल। पर्सनल फाइनेंस में हम अपनी रिक्वायरमेंट को समझना जरूरी है, उसके हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना चाहिए। अब सारे मोड हैं इन्वेस्टमेंट के, फिक्स्ड इनकम मतलब डेट हो गया, गोल्ड है, इक्विटी है, रियल स्टेट है। और मैं क्लियरली आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई एक एसेट क्लास अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है हमेशा इन्वेस्टमेंट के टाइम में डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है, इवन आई से दैट। पोर्टफोलियो में थोड़ा गोल्ड का पोर्शन भी होना चाहिए, इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। अगर आपके शॉर्ट टर्म गोल्स है, अगर आपको लगता है आपको 1 ईयर या 2 ईयर में पैसे की जरूरत है, तो फिक्स्ड इनकम यानी कि एफडी वाले इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। सो रियल स्टेट भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन। आई विल नेवर से कि आप एक ही जगह पैसे डालो, दैट्स नॉट राइट एडवाइस। इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन, एंड डिपेंडिंग ऑन पर्सनस रिक्वायरमेंट आप उसको प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो अगर आज के मैं सेशन की टेक अवे की बात करूं, तो आई विल से कि ये की टेक अवेज हैं। एक तो गोल बेस्ड प्लानिंग, कि हमारी कोई भी प्लानिंग है वो गोल बेस्ड अगर होगी तो चांसेस है हम उसको पूरा करेंगे। इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, अगर आप सिंगल की टेक अवे यहाँ से लेना चाहते हो तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझो। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग मुझे लगता है लाइफ में हर जगह यूज होती है, बिजनेस, रिलेशनशिप, नॉलेज, मनी, एवरीवेयर। यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू स्पेंड डेली टाइम, एफर्ट देना पड़ेगा, एंड देन आपको कुछ टाइम बाद रिजल्ट दिखेंगे। आपको क्विक फिक्स कुछ नहीं होता। करेक्शंस आर पार्ट ऑफ मार्केट साइकिल, हमने काफी करेक्शंस के बारे में बात करी। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड टैक्सेस ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मेरा रिक्वेस्ट है नेक्स्ट टाइम से
ध्यान दो कि उस पर टैक्स और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, एंड देन सी वेदर यू आर मेकिंग पॉजिटिव रिटर्न पोस्ट टैक्स एंड इन्फ्लेशन ग्रोथ। तो कोई भी आप डिसीजन लो इन्वेस्टमेंट का, मेक श्योर अंडरस्टैंड उनके रिस्क क्या है, अंडरस्टैंड उनका टैक्सेशन ट्रीटमेंट क्या है, अंडरस्टैंड वो इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। सो आई थिंक विद दिस वी आर एंड ऑफ आवर सेशन। अब एक फीडबैक फॉर्म है, मैं आपको चैट बॉक्स में भी डालूंगा। आई विल रिक्वेस्ट, इट विल हार्डली टेक ए मिनट। आप इस फीडबैक फॉर्म को फिल करिए, एंड जो भी फीडबैक फॉर्म को फिल करेंगे हम उनको ना एक बुकलेट दे रहे हैं पीडीएफ की, व्हाट माय फैमिली शुड नो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आई डोंट नो आप लोगों के साथ ऐसा किसी जानने में हुआ है कि नहीं हुआ है, बट आई विल टेल यू रियल इंसिडेंसेस जो मेरे क्लाइंट्स के साथ भी हुए हैं और मेरे नोन में भी हुए हैं, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड टाइम। कि फैमिली में कोई अर्न कर रहा है, उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, एंड फैमिली को कुछ भी आइडिया नहीं है कि कितने बैंक अकाउंट्स हैं, कितना डीमैट अकाउंट है, कितने म्यूचुअल फंड्स हैं, एंड दैट पर्सन बिकॉज ऑफ कोविड सडनली डेथ हुई, एंड फैमिली इज स्ट्रगलिंग फॉर ईयर्स टू गेट डिटेल्स ऑफ इंश्योरेंसेज, म्यूचुअल फंड्स, डीमैट। तो मैं आप सबको एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, आई विल शो इट विद यू कि वो पीडीएफ क्या है। तो जो लोग फीडबैक फॉर्म फिल करेंगे, मैं फीडबैक फॉर्म आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में भी सर्कुलेट करवा दूंगा। सो दिस इज अ पीडीएफ विच वी विल शेयर विद यू, विच सेज व्हाट माय फैमिली शुड नो। आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग ये बुकलेट को यूज करें, प्रिंट आउट निकालें, अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने स्पाउसेस को भी बोले फिल इन दिस डिटेल्स। ये उसमें सारी चीजें डिटेल लिखी हुई है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर है, इंश्योरेंस पॉलिसी कहाँ पर है, कौन आपके एडवाइजर्स हैं, पीपीएफ अकाउंट का नंबर क्या है, कौन नॉमिनी है, प्रॉपर्टी के बारे में, विल अगर बनाई है तो कहाँ पर रखी हुई है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। इट्स ए कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, एंड ट्रस्ट मी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिक्वायर्ड बाय एवरीवन irrespective of the age. So I have done the same thing with for my family. I have filled this detail, I have given to my wife, उसके पास अलग से कॉपी रखी हुई है। So we have the information कि कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, and it makes life lot easier for the person जिनके लिए हम ये सब कर रहे हैं। अगर उनको वो चीज नहीं पहुंच पा रही है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फायदा क्या। So I think this is something which normally not many people talk about, but I think it's a very important aspect. तो मैं आप लोग को फीडबैक फॉर्म का लिंक भेज रहा हूँ। सो दिस इज अ लिंक, मैं आप लोग को भेज रहा हूँ, प्लीज फिल करिए, इट विल हार्डली टेक अ मिनट। एंड उसके बाद जो भी फीडबैक फॉर्म फिल करेगा उसको हम लोग, सो ये यहाँ पे मेरी टीम ने डाल दिया फीडबैक फॉर्म, प्लीज फिल करिए, हम सबको ये बुकलेट देंगे। सो दैट्स ए फ्री बुकलेट विच वी गिविंग विद यू। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, and I thank you everyone for attending in today's session. Thank you the team for arranging such a wonderful session. I'm open for any Q&A and also request for feedbacks. आपको सेशन कैसा लगा, क्या आपने नया सीखा, कुछ आपको अच्छी बातें लगी, क्या पॉजिटिव हम और कर सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं, गिव योर फीडबैक्स and ask any questions. I am open for any questions. So these are my contact details. If anyone want to reach out to us, they can reach out to us. So I'm open for Q&A. So any questions, anything filled. Thank you. आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, अनम्यूट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या चैट में डाल सकते हैं। और प्लीज सेशन का फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा आपको सेशन, गुड और बैड, व्हाटएवर इट इज, गिव योर फीडबैक कि आपको कोई चीज अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, कुछ समझ में नहीं आया, और कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में इन जनरल, आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर इट। Hi, this is Trishti. Sorry, I was not getting option of raising hand, so I'm just directly asking. नो इश्यूज, बताइए मैम। Okay, yeah. First of all, it was a great session. So my question is that, if we want to have more gain in short time, like I understand power of compounding, but for short time, how we can get better returns? मैम आपको ना मैं एक चीज बहुत प्रैक्टिकली बताता हूँ कि शॉर्ट टर्म में गेन्स ज्यादा तभी आ सकते हैं व्हेन मार्केट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी। जब मार्केट में करेक्शन अपॉर्चुनिटी आती है, आप उस टाइम पे बड़ा इन्वेस्ट करोगे तो आपको शॉर्ट टर्म में अच्छे गेन्स आएंगे। पर नॉर्मल सिनेरियोज में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। द प्रॉब्लम इज दैट कि स्टॉक मार्केट इज एक्चुअली लाइक ए टेस्ट मैच, बट मेनी पीपल ट्राई टू प्ले इट लाइक ए T20। तो आप अगर टाइम नहीं दोगे तो प्रॉब्लम होगी, अगर आप टाइम दोगे, ट्रस्ट मी, यू विल क्रिएट इनफ वेल्थ। अगर शॉर्ट टर्म में आपको ज्यादा वेल्थ क्रिएट करनी है, देन यू नीड टू हैव फंड्स अवेलेबल विद यू। जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी आती है एवरी टाइम 2 3 4 years देयर विल बी सम करेक्शन, उस टाइम पे डिप्लॉय बिग अमाउंट, इन नेक्स्ट 1 to 2 years यू विल मेक मनी। ओके, मैं स्लाइड फिर से दिखा देता हूँ कॉन्टेक्ट डिटेल्स की, नो इश्यूज। ओके, सो विल हैव दैट
Slide. Okay, so I mean, any particular type of investment you suggest in the market में आप कह रहे हैं opportunity आएगी? So what kind of opportunity will be that? जी देखिए, अगर मार्केट में आपको स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म गेन्स लेने हैं तो मैं बता देता हूँ, आप ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं. सो देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेडिंग विच इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग. तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, यू टेक ए पोजीशन इन स्टॉक्स फॉर फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स. जस्ट आपने 1 to 2 वीक से लेकर 2-3 मंथ्स तक पोजीशन बनाई, दैट इज कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग. या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जहां पे आप मार्केट्स में थोड़ा सा ज्यादा गेन कमा सकते हो, बट उसके लिए मार्केट कंडीशंस फेवरेबल होनी चाहिए. मतलब मार्केट कंडीशंस फेवरेबल होनी चाहिए, इकोनॉमी में ठीक चलनी चाहिए. उस सिनेरियो में अगर मार्केट कंडीशंस ठीक नहीं है तो उस टाइम पे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चांसेस कम है. सेल साइड भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो, बट एडवाइजेबल नहीं है. ट्रेडिंग करके कर सकते हो, बट इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल. इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट, देन यू कैन डू इट. यू कैन वेरी वेल डू इट. आई एम नॉट सेइंग कि यू कैन नॉट डू इट, बट दैट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल. Okay, thank you. So stock market is the only option, even in the short term as well. शॉर्ट टर्म में ऑप्शन, अगर आप मुझसे पूछेंगी ना, तो आई विल टेल यू द रियल सिनेरियो. शॉर्ट टर्म में पॉइंट ये है कि हमें रिस्क पे ध्यान ज्यादा देना चाहिए कि यार हमारे जो कैपिटल है वो सेफ रहे और रीजनेबल रिटर्न्स आ जाए. लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन इज ए बिगर रिस्क. तो लॉन्ग टर्म में हमें ज्यादा रिटर्न की जरूरत, टेंशन होनी चाहिए कि मैं अपने इन्फ्लेशन और टैक्स को भी बीट कर पाऊं. तो लॉन्ग टर्म में हमें ज्यादा रिटर्न की वो होना चाहिए. अब शॉर्ट टर्म में देखो, आप रिटर्न कमा सकते हो. इट ऑल बॉल्स डाउन टू अपॉर्चुनिटीज. अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ अपॉर्चुनिटीज में. सपोज रियल एस्टेट में अपॉर्चुनिटी है, यू गेट ए लैंड डील और ए प्रॉपर्टी डील जहां पे किसी को मजबूरी है उसको सेल आउट करना है. यू गेट ए वेरी डिस्काउंटेड प्राइस, यू गेट ए 20-30% डिस्काउंटेड. यू नो कि यार प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 CR है, बट सामने वाले को जरूरत है, वो 70 lakhs में बेच रहा है. सो दैट यू गेट ए शॉर्ट टर्म डील. आपने वो बाय किया, विद इन 3-6 months यू विल मेक मनी. ट्रस्ट मी, यू विल मेक मनी. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि शॉर्ट टर्म में you have to wait for right opportunities. So every time opportunity cannot be there. Same happens with the stock market. कि stock market में अगर आपको लगता है market में correction आ रहा है, it's a time to put in the money, and within 3-6 months, trust me, you will make good money. So need to wait for opportunities if you want to make good money in short term. Okay, okay, thank you. Any other question? Any other feedback? Any other question? I have started my startup with very low investment in, okay. Okay, so let me take question one by one. नेहा जी का डायरेक्ट में आया है. I will read out the question. I did one LIC pension plan last year, 40,000 per year investment, and retirement age will get 4,000 yearly pension. So it's a pension plan. So pension plan में क्या होता है, as you know कि आपको एक फिक्स अमाउंट आता है, एक फिक्स अमाउंट आता है. इज इट गुड और सो सी पेंशन में क्या होता है, रिटर्न ऑलमोस्ट आपका फ्रीज हो गया है. तो वो आपको आई डोंट नो क्या रिटर्न आपका आया. आई थिंक सिंपल इंटरेस्ट इट इज 10%, बट कंपाउंडिंग अगर आप देखोगे तो रिटर्न कम आएगा व्हेन यू कंसीडर द कंपाउंडिंग कंपोनेंट. तो सेफ्टी परस्पेक्टिव से ठीक है, बट अगर आपकी पेंशन को, मतलब अभी आपकी एज है, आपके पास अभी रिटायरमेंट काफी टाइम के बाद है, तो मुझे लगता है पेंशन प्लान इज नॉट ए राइट प्रोडक्ट. और ट्रस्ट मी, 4,000 रुपीज पर मंथ की, ओके 4,000 ईयरली पेंशन, आई एम रियली सॉरी, इज नथिंग. मतलब आपको कुछ नहीं मिलने वाला. 4,000 ईयरली पेंशन इज नथिंग, इज नथिंग. उससे कुछ अचीव नहीं होगा. शालिन जी का क्वेश्चन है, ओके आई विल नॉट टेक द नेम, आई विल जस्ट रीड द क्वेश्चन. सो बिकॉज पीपल हैव राइट द डायरेक्ट क्वेश्चन ऑल्सो. I have started my startup with very low investment, and in starting we have more cash outflow than inflow. How can we make our low investments increase in value over time? So मतलब अब ये तो प्रॉब्लम है. देखो, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए कैश फ्लोस तो मैनेज करने पड़ेंगे. तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अभी आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया है तो आप अपने स्टार्टअप पे फोकस करो, इसको स्केल अप करो, मेक इट पॉजिटिव कैश आउटफ्लो, देन टेकिंग आउट मनी फ्रॉम दैट स्टार्टअप आप अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा लो और उसको फिर इन्वेस्ट करो. सो इनिशियल फेज है. सी आई आल्सो हैड ए स्टार्टअप, आई अंडरस्टैंड यू व्हाट आर यू गोइंग थ्रू. सो आई विल सिंपली से आप अपने बिजनेस पे फोकस करो अभी, मेक इट मोर पॉजिटिव कैश फ्लो एज अर्ली एज पॉसिबल, एंड देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग. Does travel company get MSME loan? So इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं है. आप मेरे को पर्सनली रीच आउट कर लेना. आई विल टॉक टू माय टीम. सो लोन्स के लिए मेरे दूसरे पार्टनर हैं हु लुक्स आफ्टर द लोन साइड. सो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, बट आप मेरे को प्लीज इस कॉन्टेक्स्ट में रीच आउट करना. आई विल रीच आउट टू यू. एनी अदर क्वेश्चंस? कुछ भी क्वेश्चन है आप अनम्यूट कर सकते हो, चैट बॉक्स में डाल सकते हो. more than welcome to ask any questions. Hello, sir. Hello. Yes, ma'am.
सर मैंने आज तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया, बट मेरे को करना है, तो मैं स्टार्ट कैसे करूं? लाइक मतलब आप इफ यू वांट अस टू हेल्प यू तो आप मुझे रीच आउट कर लेना, वी विल हेल्प यू, विल गाइड यू विद एवरीथिंग इफ यू वांट दैट। और अदरवाइज ऑल्सो अगर आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए तो आप मुझे रीच आउट कर लेना, आई विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू सर। हाँ, प्रोसेस होता है पूरा म्यूचुअल फंड का, विल हेल्प यू। तो एनीवन हु रिक्वायर्स नॉलेज फ्रॉम अस कि कैसे होता है तो विल गाइड यू। बिल्कुल करना चाहिए नेहा मैम, आपका आया है, आई नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन सिप नाउ। ट्रस्ट में मैं बहुत ज्यादा, और मैं बिलीव करता हूँ बिकॉज मैंने खुद स्टार्ट किया था। फ्रॉम माई फर्स्ट जॉब आई स्टार्टेड माई SIPs and that is why I was able to leave my job and start my own business. So it is skin in the game and I 100% believe कि लॉन्ग टर्म में इससे बेटर रिटर्न्स नहीं मिलेंगे आपको। मतलब दिस इज माई बिलीव, दिस इज माई कन्विक्शन। सो आई डू अंडरस्टैंड बीच में ऊपर नीचे होगा, बीच में वैल्यूज नीचे जाएंगी, बट हमको घबराना नहीं है, कंटिन्यू करना है। इट्स ए वेरी पावरफुल वे ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ, इट्स ए वेरी पावरफुल वे। आप इफेक्टिवली ऐसे समझो कि आप खुद एक दो बिजनेस रन कर रहे हो, बट अब आप इंडिया के बड़े बड़े बिजनेस हाउस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और वो ग्रो कर रहे हैं तो आप ग्रो कर रहे हो। आपका पैसा रिलायंस में भी लग रहा है, आपका पैसा TCS में भी लग रहा है, आपका पैसा HDFC बैंक में भी लग रहा है। इवेंचुअली इसका मतलब ये है, एंड वो बिजनेस ग्रो कर रहे हो तो आप भी ग्रो कर रहे हो। तो बेसिकली हम इंडियन इकोनॉमी में, हम US इकोनॉमी में पैसा लगा रहे हैं। मेरे को मानना है कि लॉन्ग टर्म में इस पर ग्रोथ अच्छी आती है। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? कोई भी सवाल है, छोटा बड़ा, बिल्कुल पूछिए, कोई डाउट मत रखिए मन में। आई विल लव टू आंसर एवरी क्वेश्चंस। और जिन्होंने भी फीडबैक फॉर्म फिल किया है, डोंट वरी, हम वो सबको PDF मेल कर देंगे अबाउट व्हाट योर फैमिली शुड नो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट PDF। I have invested 70% MF and 30% in equity. Wanted to withdraw some funds. Where shall I withdraw from? Okay, so एक क्वेश्चन आया है, 70% MF and 30% इक्विटी, वांट टू विड्रॉ सम। अच्छा, तो अगर आप मेरा प्रेफरेंस जानना चाहती हैं तो आई विल से कि इक्विटी से आप फंड्स पहले विड्रॉ कर लो। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में एग्जिट लोड भी होते हैं। नॉर्मली अगर इक्विटी फंड्स हैं तो 1 ईयर का एग्जिट लोड होता है। सो आई डोंट नो आपने कब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। सो ये क्वेश्चन मेरे को डायरेक्ट मैसेज में आया है, तो आई एम जस्ट टेलिंग दैट। सो in terms of preference, I will say equity should be the first preference and then followed by mutual fund. So some questions are coming in direct message also, which is okay. I will take all the questions. That's perfectly okay. Thank you. Think the same. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Most welcome. Any other questions? Sir, I wanted to ask, you just mentioned for mutual funds. Am I audible? Yes, ma'am. You are audible. You just mentioned there are exit clause in mutual funds. What are those clause? Exit If it load is more than 3 to 5 years, then normally नहीं होता मैम. So I will let you know. Equity mutual funds में normally 1 year से पहले अगर आप निकालते हो तो 1% का लोड होता है. It all depends on scheme to scheme. But मैं जनरल रूल बता रहा हूँ. 1 year के बियॉन्ड अगर आप निकालते हो तो नॉर्मली एग्जिट लोड नहीं होता. दे कुड बी 1 or 2 schemes which are the exceptions, but generally exit loads नहीं होता.